أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کتنا احسان و کرم ہے ہم سب پر، کیا رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب پر ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حیات عطا کی کہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ محنتیں کریں، اپنے ایمان کو جو ہے الحمدللہ بہترین کر سکے۔ یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ یہ مہینہ بتاتا ہے۔ اس مہینے میں الحمدللہ ہم ہر کوئی کیا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ، بڑا ہو چھوٹا ہو نوکر ہو مالک ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے نا الحمدللہ، زبانی طور پر جسمانی طور پر ہے نا، آنا جانا ہر چیز بہترین کرتا ہے۔ تو دراصل یہ مہینہ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم ایک مومن کی زندگی کیسی ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صرف اس مہینے میں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند دکھ جاتا ہے ہم دوبارہ اپنی پرانی غلط زندگی، گمراہی والی زندگی یا کمزور ایمان والی زندگی کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے تو غور و فکر کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، نیتیں کریں گے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جیسے میں جی رہی ہوں، اس مہینے کو جیسے میں ادا کر رہی ہوں، جیسے اپنے ایمان کو پکڑ کر مضبوطی سے تیری عبادت کر رہی ہوں، تیری بندگی کر رہی ہوں، اللہ رب العزت سیم اسی طریقے سے میں آگے بھی اور زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ انشاءاللہ کروں۔ اس نیت سے انشاءاللہ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ ہم نے جو ہے کلاسز لی، بہت سارے علمی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، الحمدللہ الگ الگ پوائنٹ جو ہے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم مرحوموں کے لیے کیا کریں۔ اب ہم سوچیں گے بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں سب کی صحت کے لیے، جو بیمار ہے ان کی شفا کے لیے، لیکن یہ ٹاپک کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے، یہ ٹاپک کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے نا کہ بھئی یہ کیسے اچانک سے مرحوموں کی بات ہو رہی ہے، ایسا کیوں کرے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہر کام دنیا کا جو ہے نا، اس کا ہونا نہ ہونا وہ شاید ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے۔ شادی کا، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کی شادی زندگی بھر نہیں ہوتی، کسی کو اولاد ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کو زندگی بھر نہیں ہوتی، یعنی ہر مرحلہ زندگی کا، کسی کو علم ملتا ہے دنیائی، کسی کو نہیں ملتا ہے نا، الگ الگ چیزیں۔ میں یہاں پر کسی کے لیے کہہ نہیں رہی، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں ہر حال ضروری نہیں ہے جیسے سب کا ہو رہا ہے ویسے ہر ایک کا ہو، ہے نا، لیکن ایک چیز جو ہم سب میں ہے وہ کامن ہے، وہ کیا ہے، وہ کافر کو بھی ہوگی، وہ مشرک کو بھی ہوگی، وہ مومن کو بھی ہوگی، وہ منافق کو بھی ہوگی، جو اللہ پر ایمان لایا، جو نہیں لایا، جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، جو انکار کر، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ وہ کیا ہے، وہ ایک حق ہے جو ہے موت، ہے نا۔ تو ہم ہر چیز کی تیاری کر لیتے ہیں لیکن موت کی تیاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور آج جو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے وہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ مرحوموں کے لیے کیا کرے۔ یہ سیکھنے کا مقصد یہ ہے، یہ خاص میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں لیکن جب ہم مریں گے یا ہمارے گھر میں اللہ کے حکم سے جب کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو کیا کیا جائے اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ہمیں شریعت نہیں پتا ہوتی، سنت طریقے نہیں پتا ہوتے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہونا چاہیے، یہ تمام باتوں سے ہم بے خبر ہوتے ہیں اور پھر اسے سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک بار ہو جاتا ہے، دیکھیے موت ایسی چیز ہے کہ نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ روزانہ کوئی چیز ہوتی ہو، ہے نا، لیکن یہ حق ہے جو ہوگا، اس کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ مومن جو ہے اس کے لیے تیار رہتا ہے، جو ایمان پر نہیں ہے وہ موت سے خوف کھاتا ہے، وہ جو ہے موت سے بھاگتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ موت اس حق کو جانتا ہے اور اس کے لیے وہ راضی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے لیے جو ایمان پر نہیں ہے موت خاتمہ ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے موت ایک آگے کا راستہ ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، اس کے رب سے ملاقات، اس کا حقیقی رب ہے نا، اس کے حقیقی رب سے ملاقات کا وقت ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے سامنے
किसी की मौत हो जाए या कोई मरहूम हो तो उनके वक्त क्या करना है, और हम ये सीखेंगे ताकि हम अपनों को सिखाए कि अगर अल्लाह के हुक्म से हम मर जाए तो उनको हमारे लिए क्या करना है। ये हमारी नियतें होंगी, कोशिश होगी, ये इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है ना? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हम थोड़ा-सा जितना इल्म हम सीख पाए हैं, अल्लाह के हुक्म से जो छोटा-सा ना टूटा-फूटा इल्म मैं सीख पाई हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी बहनों के साथ भी इसे शेयर करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह आयतें गुज़री है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है ना? मौत जो है ना 1 सेकंड जो वक़्त मुकर्रर कर दिया गया, ना वो 1 सेकंड पहले होगी, ना वो 1 सेकंड बाद में होगी। जो वक़्त लिखा है उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म से है ना? तो हम क्या करें? हमें तो पता नहीं है वक़्त कौन-सा है, उसकी तैयारियों में लगे। क्योंकि जब हम मौत को याद करते हैं, तभी हमारी फ़िक्रें बढ़ती हैं। हम अपने अमालों पर गौर-व-फ़िक्र करते हैं। क्या मैंने तमाम हक़ अदा की? क्या मैंने अपने रब का हक़ अदा की? क्या मैंने कुरान का हक़ अदा की? क्या मैंने लोगों का हक़ अदा की? है ना? ये तमाम क्या मैंने अपने नबी का हक़ अदा तो जब फ़िक्रें आती हैं इंशाअल्लाह मौत को याद करने से हम अमल की तरफ दौड़ते हैं, गुनाहों से बचते हैं। तो याद रखें मेरी बहनों हर हाल में जभी भी नॉर्मली क्या होता है जब भी हमें किसी की मौत की खबर मिलती है, तो हम अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं। हम जो है ना ताज्जुब में पड़ जाते हैं, अरे! ये सेहतमंद थे, अचानक कैसे हो गया? अच्छा वो बीमार थे, अच्छा ऐसा हो गया, है ना? लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए याद दिलानी है। जब भी ऐसी कोई खबर हम तक पहुँचे, तो हमें फ़ौरन ये याद करना है कि हाँ, उसका वक़्त मुकर्रर था, मेरा भी वक़्त मुकर्रर है। क्या मैंने मेरी तैयारी कर ली? आज दुनिया में हमें छोटे से सफ़र के लिए भी निकले ना मेरी बहनों, अगर हम सोचिए ना अभी कभी ना कभी बाज़ार जाना होता है या फैमिली के साथ कहीं बाहर निकलते हैं या कहीं घूमने के इरादे से निकलते हैं, किसी घर पे किसी रिश्तेदार के पास जाने की तैयारी होती है, तो हम फिर भी है ना पूरी तैयारी कर लेते हैं। भाई रास्ते में जा रहे हैं तो सफर के हिसाब से बच्चों के लिए रख लो, कुछ खाने का सामान रख लो, है ना? रुमाल वगैरह रख लो, ये तमाम नैपकिन्स वगैरह हो, अब तो सैनिटाइज़र है, मास्क है, एक्स्ट्रा मास्क रख लेते हैं। भई नहीं अगर एक गिर गया, घूम गया तो क्या करेंगे? तो बताने का मेरा मकसद है कि छोटे से मामूली से सफर के लिए हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो हकीकी सफर हमारा शुरू होने वाला है, क्या उसकी तैयारी हमने की? तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बार-बार सीखते हैं कुरान में। लेकिन आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि अगर किसी की मौत हो जाती है, कोई वफ़ात पा जाता है, तो उसके आस-पास के लोग, उसके घरवाले, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले, है ना? पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, दूर के कोई भी किसी को भी खबर मिले तो वो क्या करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जब हम सीखेंगे, अमल करेंगे और हमारे अपने इसको देखेंगे तो वो सीखेंगे। अगर मैं ये चीज़ सीखने की मेरी नीयत तो यही है कि जब मैं करूँगी इस काम को, मैं अमल करूँगी तो मेरी औलादें इसको देखेंगी। है ना? मैं ज़बानी तौर पर कितना ही कह दूँ, लेकिन जब अमल करते हुए देखेंगे तो ही हमारी नस्लें जो है इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगी। तो मैं इस फ़िक्र में क्या अल्लाह कल मेरी वफ़ात हो जाएगी, मैं मर जाऊँगी, तो दुनिया में तो मैंने जब ज़िंदा थी तब तो पूरी कोशिश की तेरी रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने की। ऐसा ना हो कि जो मेरा मेन सफ़र शुरू होगा, उस वक़्त कहीं मुझसे या मेरे घरवालों से जो मेरी जो तमाम तैयारियाँ करने वाले हैं सफ़र की, उनसे कोई कमी कोताही रह जाए, शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ कोई ऐसा हो जाए, जिसके लिए तू मुझे पकड़ ले। इस फ़िक्रों में इंशाल्लाह आज हम ये बातें सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जानते हैं जो कोई भी पैदा होता है, इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंद हो, परिंद हो, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। सब मरेंगे, सबको मौत आनी ही है ना? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमें जो है उसका हिसाब-किताब दिया जाएगा कि हमने दुनिया में कैसी ज़िंदगी बिताई। लेकिन जो बाकी जानवर, कीड़े वग़ैरह होंगे, इनको जो है इनका भी हिसाब-किताब होगा, लेकिन फिर उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें हमारे अमाल के मुताबिक जज़ा दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही कहते हैं कुरान की आयतों में कि जो पैदा होगा उसे मौत आनी ही है। देखिए हम 2 बार हमें ज़िंदगी मिलती है। अगर हम इसे एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हमें लगता है अब जो ज़िंदगी है ना बस यही हकीकी ज़िंदगी है, नहीं। हम जब माँ के पेट में होते हैं ना एक टुकड़ा होता है, छोटा-सा एक नुत्फ़ा कहते हैं ना, छोटा-सा टुकड़ा होता है, वो बेजान होता है, वो मुर्दा होता है।
اللہ रब्बुल इज्जत उसके अंदर जान अता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये जिंदगी मिलती है, फिर हमें मौत आती है और इसके बाद हमारी असल जिंदगी शुरू होती है जो हमेशगी की है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत का मजा जब चखना ही है तो उसकी तैयारी करेंगे। और इस्लाम अकेला ये दीन जो हक है ना, बाकी सब तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन इसमें भी हम किसी को उनके मजहब के हिसाब से तानाघोशी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ईमान इतना मजबूत अब नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दीन ने हमारी जिंदगी के हर हालात में हमें कैसे इस जिंदगी को जीना है बता दिया है। जब पैदाइश होती है तो क्या करना है, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे उसका वेलकम किया जाए सही तरीके से, सुन्नत तरीके से। ये आजकल की रस्मात नहीं देखना है, सुन्नत देखना है इंशाल्लाह, है ना। आज का टॉपिक लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये चीजें सिखाई गई। शादी का मरहला आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो भी हमें सिखा दिया कि निकाह कैसा किया जाए, है ना, आसान तरीका बता दिया। वैसे ही जब कोई मर जाए तो क्या करना है वो भी सुन्नत से साबित है। क्या सुन्नत तरीका है, कैसे हो हमारा माहौल, गम का जो माहौल होता है, गम कैसे मनाया जाए, उसमें आने वाले जो लोग शिरकत करते हैं वो क्या करें, कैसे घर वालों को जिनके घर में ये मौत हुई है उनको कैसे दिलासा दे, है ना, ताजियत करें, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सीखेंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद रखिए जो गम होता है, दरअसल जिसके भी घर में मौत हो, है ना, वालिद की हो, माँ वालिदा की हो, भाई की हो, बहन की हो, औलाद की हो, दादा की हो, दादी की हो, नानी की हो, किसी की भी कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा होता है। और जब भी किसी की मौत होती है हमें गम लग होता है, तकलीफ पहुंचती है, जुदाई का एहसास होता है ना। हमें होता है कि भाई इनके साथ हम रहे, अब अचानक वो हमसे क्या हो गए, दूर हो गए, हमसे जुदा हो गए हैं। हमें जो है इन तमाम चीजों की फिक्र सताती है। तो वो इतना बड़ा गम जो लगता है उसकी इजाजत है, गम होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मना नहीं किया, उसे मनाने की भी इजाजत है, लेकिन कैसे, क्या तरीका है इसका वो हम सीखेंगे, है ना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितनी बार बताया कि हमसे पहलों की उम्मतों ने कितनी गलतियां की, गुमराही की तरफ गए। कब वो गुमराही की तरफ गए, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताए हुए रास्तों को, उनके अंबियाओं के बताए हुए रास्तों से हटकर अपनी मन मर्जी से अमल किए, अपनी मन मर्जी मुताबिक रस्मात शुरू किए, है ना, तो वो क्या हो गए, वो गुमराह हो गए। तो एक मोमिन को, मुसलमान को क्या गौर व फिक्र करना है कि जो सीधा रास्ता हमें कुरान ने हमें बताया है, जो कुरान में हमें नहीं समझ में आता वो सुन्नत हमें बताती है, बस उसी पर हम अमल करेंगे, है ना। तो हमारे लिए क्या एग्जाम्पल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनकी जिंदगानी के बाद सहाबा क्या करते थे, ताबाइन क्या करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन इमामों को हम मानते हैं, जिस किसी इमाम को हम मानते हैं वो क्या करते थे, है ना। तो इंशाल्लाह हम गौर फिक्र करें। अब याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मौत किसे कहते हैं, हमने हमने शुरुआत में की थी ना कि मौत लोगों को लगता है कि खात्मा है, नहीं, मौत उसे कहते हैं जो इंसानी रूह जो इस दुनिया में इस जिस्म में डाली गई है, वो इस दुनिया से कूच करती है, रुखसती करती है, सफर के लिए निकल जाती है। यानी इस जिस्म से रूह का निकलना उसे मौत कहते हैं, और जिस जिस्म पर ये होता है उसे क्या कहते हैं, मैयत कहते हैं, है ना। तो जब अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह ही मौत दे रहा है, जिंदगी देने वाला भी वही हकीकी रब है और मौत देने वाला भी वही हकीकी रब है। तो हमें क्या करना है, हमें हर हाल में राजी रहना है ना। अब मौत हम सोचते हैं भाई मौत तो बुढ़ापे में आती है, जवानी में बहुत कम होता है ना। नहीं, मौत देखिए हर वक्त जो है हर किसी की उम्र में हो सकती है। मैं यहाँ पर 3 ऐसी मुख्तसर से वक्त बताते चलती हूँ। पहला एक होता है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है, कितनी बार हमने सुना है ना, हम बहनें इस बात से रूबरू है, जानती है, सुना है, देखा है, कितनी बार होता है कि हमल होता है लेकिन वो नहीं टिक पाता, वो अपनी पूरी मुद्दत तक नहीं आ पाता, है ना। वो क्या होता है, उस बच्चे का वजूद जब उस पेट में होता है तो क्या होता है, उसे वहीं पर मौत आ जाती है, यानी पैदा होने से पहले मौत आ गई, है ना। तो सोचिए जिंदगी मिलने से पहले क्या हुआ, जिंदगी मिली पेट में लेकिन फिर मौत भी आ गई। दूसरा होता है कि जब पैदा हो जाते हैं उस वक्त कितनी बार होता है ना, डिलीवरी के वक्त अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो है
वो जिंदगी उनकी आगे नहीं बढ़ पाती अल्लाह के हुक्म से, है ना। यानी पैदा होते ही भी उनको कितनों को मौत आ जाती है। तीसरा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमल पूरा हो गया, जिंदगी मिल गई। कुछ जो है कुछ महीने जीते हैं, कुछ साल जीते हैं, कुछ तो बहुत अरसे तक जीते हैं ना, 40 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। हम इससे पहले की जो उम्मतें गुजरी वो तो कई सौ साल तक भी उनकी हयाती थी, है ना। तो बताने का मकसद है कि मौत हर वक्त हर हाल में किसी को भी आ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं बताते चलूं मौत की जो हकीकत है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है मौत के फरिश्ते आए। जब वो उनके पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक मुक्का मार दिया, मतलब एक बोलते ना एक नबी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने उन्हें मुक्का मार दिया, यानी एक तरीके से भेज दिया। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गया, उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ ऐसा किया, कि उनकी आंखें बाहर निकल आई। नबी है, कुव्वत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहना कि एक जानवर के जो है जिस्म पे पीठ पर जो है हाथ फेरें, और जितने बाल उस जानवर के उनके हाथ में लगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनकी जिंदगी उतने सालों के लिए बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? जितने बाल मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर लगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जिंदगी उतने साल के लिए बढ़ा देंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो फरिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ये पैगाम उनको बता दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए पैगाम है, ये भेजा गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि इसके बाद क्या होगा? जितने साल तो जितने बाल लगे उतनी जिंदगी तो मिल गई, उसके बाद? बोले उसके बाद मौत तय है। तो बोले अभी ले चलो मुझे, है ना। जब मौत तय है कि अब नहीं तब भी आनी ही है, तो मुझे अभी ले चलो, है ना। तो ये क्या बताता है? क्या मौत जो है हर एक को आनी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हम देखते हैं कितनी बार जो है लोगों को, कभी हम सुनते हैं कि भाई जलजले आ गए, बड़े बड़े हादसे हो गए, तो बहुत ज्यादा लोगों की मौत सुनते हैं, है ना। जलजला हुआ, सुनामी हो गया, बाढ़ आ जाती है, तमाम चीजों में कितने कईयों लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स में। कुछ चंद दर्जन या 4-5 ऐसे होते हैं, कितने होते हैं जो बीमारी की वजह से अकेले अकेले होते हैं ना मौत। तो मौत जो है ये हर हाल में क्या है, सिंगल्स में, डबल्स में, ग्रुप्स में, डजन्स में आती ही आती है ना। तो ये बात को हम जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सही मुस्लिम से रिवायत है कि दुनिया जो है वो इम्तिहान है, और इसके बाद मौमीन के लिए, याद रखिए गौर फिक्र से सुनिए मेरी बहनों, दुनिया जो है ये दुनिया जिसे इतनी मोहब्बत हमें हो गई है ना, ये दुनिया जो है ये एक इम्तिहान है। और इसके बाद मौमीन के लिए जो मुकम्मल ईमान पर है, जो अल्लाह पर पूरा का पूरा ईमान लाया है, उसके लिए क्या है? आजादी का जरिया है। मौत जो होगी ना वो क्या होगी? आजादी। इस जो बंदिश में हम बंधे, ये हमारा कैद खाना है। जब मौत आएगी तो क्या करेगी? इंशाल्लाह हमें इस बंदिश से, इस कैद खाने से आजाद करेगी। हमारी हकीकी मालिक से हमें रूबरू कराएगी। हमारा जो हकीकी घर है इंशाल्लाह जन्नत, उसमें हमें अल्लाह के रहमत से लेकर जाए, है ना। तो हर याद रखिए मौमीन जो है मौत से डरे नहीं, मौत से क्या करे? मुंह फेरे नहीं, उसकी तैयारियों में फिक्र करना है। खौफ कैसा हो कि उसकी फिक्र में अमल हो जाए बेहतरीन, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है, ये हदीसों में आता है, अल्लाह ने इंसान को जन्नती बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जन्नती बनाया है। उसके लिए दुनिया में रहना मुश्किल है और आखिरत में जहन्नुम में रहना नामुमकिन है ना। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देके चलूं तो हम नहीं, कोई चीज से फिक्स होता है। अगर एक आइसक्रीम है ना, मैं एक सिंपल तरीका समझाने के लिए बताती हूँ। आइसक्रीम कहाँ बेहतरीन तौर पर रहेगी? अगर जब वो फ्रीजर में रखी जाएगी तो वो आइसक्रीम रहेगी, उसके लिए वो जगह मुकर्रर सही है। लेकिन अगर उसको हमने गैस पे रख दिया, या चलिए फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया, तो क्या वो आइसक्रीम की शक्ल में होती है? वो बदल जाती है ना। या तो उसकी तासीर, उसका मतलब पूरा हर चीज उसका बदल जाता है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब बताने का मकसद ये है कि हमारा, हम जो है, हमारी कैफियत, हमारा जो इंसानी ये है, वो सिर्फ जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया।
اب یہ ہماری غلطی کمی کوتاہی ہوگی کہ ہم نے ایسے اعمال کیے کہ دنیا سے لگاؤ ہو گیا، تو یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر اعمال خراب ہو گئے تو جہنم بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں جنت ہی ہمارے لیے بیسٹ ہے، اور بس وہی ہے، تو اس کے لیے محنتیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں بار بار اللہ رب العزت جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنت کسے دی جائے گی؟ متقی کو۔ اس کا حقدار کون ہے؟ متقی ہے۔ قرآن جب کھولتے ہیں، بہت تلاوتیں ہم نے کرنی، دیکھیے ہم بہت سی بہنیں الحمدللہ یہاں ہم جڑتے ہیں علم کی باتیں سیکھنے کو، لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے کہ بھئی قرآن ترجمہ تفسیر سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم سنیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ بھئی قرآن تو میں خود گھر میں تنہائی میں پڑھ لیتی ہوں، بلکہ ایک کلاس تو 1 گھنٹے کی ہوگی، میں تو تنہائی میں 2 3 4 گھنٹے پڑھتی ہوں۔ ارے ترجمہ آپ کراتے ہو، الحمدللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، میں تو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں، ہے نا؟ کتنی بار ہمارا نفس ہمیں یہ بتاتا ہے، وہ ہمیں کمزور کراتا ہے۔ لیکن میری بہنوں یاد رکھیے، جس مجلسوں کی الحمدللہ ہم دعوت دیتے ہیں، ہم جمع ہوتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہمیں فرشتے گھیرتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں نا، دیکھیے جب میں خود پڑھوں گی نا تو وہ مجھے الحمدللہ میں سنوں گی، سمجھوں گی، پڑھوں گی تو، لیکن جب میں کسی اور سے سنتی ہوں تو مجھے وہ اور زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم باقی سب چیزیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں سیکھ رہے، لیکن قرآن ارے وہ تو میں کرتی ہوں، ایسا نہ کریں۔ قرآن ہی حق ہے، وہ اسی کے لیے ہمیں کیا کرے گا؟ وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ جب بنے گا تو ہی تو ہماری مدد کرے گا نا۔ اگر بیسٹ فرینڈ نہیں بنا رہے ہیں تو آخرت کے دن حشر کے میدان میں ہمارا وکیل کون بنے گا؟ اللہ سے ہمارے لیے جھگڑا کون کرے گا؟ جنت میں ہمارے درجات کون بڑھائے گا؟ ہے نا؟ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن سے جڑیے میری بہن، الحمدللہ، ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے مومین جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ذریعہ کیا ہے؟ موت ذریعہ ہے اپنے حقیقی رب سے ملاقات کا۔ اب جب بھی ہمارے سامنے موت کا ذکر ہوگا کہ ہم موت کا تصور کریں گے تو فوراً کیا یاد کریں گے؟ اچھا یہ تو میرا نیکسٹ سٹیپ ہے، کس لیے؟ میرے رب سے ملاقات کا۔ یہ تو میرا وہ بولتے نا ایک سواری ہے کہ بھئی اس میں سوار ہو کر میں وہاں پہنچوں گی جہاں میں اپنے رب کو ملاقات کروں گی، ہے نا؟ اللہ سے محبت ویسی انشاءاللہ پیدا ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی، فکریں بھی آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور حدیثوں کے ذریعے طریقے بتا دیے نا، الحمدللہ، کہ کیا دعائیں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، الحمدللہ، ہے نا؟ تو پہلے تو دیکھیے میری بہنوں، جب بھی ہمیں کسی کی موت کی خبر ملتی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھی، اگر مجھے کسی نے فون کر یا میرے کسی گھر والے نے آ کر مجھے بتا دیا کہ اللہ کے حکم سے فلاں فلاں کی جو ہے موت ہو گئی، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ریئیکشن دیکھیے، یہ میں آپ کے لیے نہیں، میں خود کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ جب ہم ایمان پر کمزور تھے، علم کی کمی تھی نا، تو ارے کیسے ہوا؟ اللہ ایسا ہو گیا، اچھا نہیں وہ تو اچھے خرچے تھے نا، پھر ہماری زبان سے نکلتا ہے، ارے اب یاد آتا ہے پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ جب پہلے ہم ہوتا ہے تو پہلے تمام ریاکشنز کر جاتے ہیں، اس کے بعد جو بولنا چاہیے، جو دعا کرنی چاہیے وہ نکلتا ہے۔ کیا ہے یہ دعا؟ الحمدللہ۔ کون ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور موت کیا کرتی ہے؟ اسے ہمیں دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی ایسی کوئی خبر سنے فوراً پڑھ لیں، اس کے بعد باقی سارے سوالات، باقی سارے فکریں، فوراً دعا کرے، الحمدللہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تو نے بھیجا تھا، اللہ تو نے اپنے پاس دوبارہ لے لیا، تیری امانت تھی، اللہ تیری امانت تجھ تک پہنچ گئی، الحمدللہ، ہے نا؟ اور موت آنے پر کیا ہوتا ہے؟ ایک جدائی کا احساس ہوتا ہے نا، ہمیں کہیں نہ کہیں صدمہ لگتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ہم غمگین ہوتے ہیں، بھئی والد تھے، بھائی تھے، بہن تھی، چاچا تھے، چاچی تھے، جو بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے بہت زندگی جی گئے، پھر بھی ایک لگتا ہے نا، ارے دادی تھے، ان سے محبت تھی، ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جب غم کا وقت ہوتا ہے نا، 2 حال میں ایمان کا مین ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارا ایمان کا ٹیسٹ مین کب ہوتا ہے؟ 2 حال میں، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں، اور ایک تب ہوتا ہے جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔
تو موت تو غم کا موقع ہے. اب اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, اللہ رب العزت وہ دیکھتے ہیں. اب میری بندی کیا کرے گی, ہے نا, اب میری بندگی کیا کرے گی, شریعت کے مطابق چلے گی کیا غیر شریعت مطابق چلے گی. اب کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کہہ دیں بھائی یہ طریقہ شریعت سے, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو غم میں تھی, مجھے تو خبر بھی نہیں تھی, ہے نا. اب جو لوگ آئے تھے انہوں نے کیے, میری ذمہ داری نہیں تھی, میں تو غمگین تھی. تو کیوں تھے, غمگین ہونا منع نہیں ہے, لیکن یہ علم بھی ہونا ضروری ہے نا. اب ہم انتظار تو نہیں کریں گے کہ بھائی کسی کی موت ہوگی تب بھی ہم سیکھیں گے. کوئی ایسا بیمار ہو جائے گا, ہم جانتے ہیں نا جب بہت زیادہ بیمار لوگوں کو جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی ان کے بچنے کے چانسز کم ہے, تب جا کے تیاری نہیں کرنی ہے. موت تو فکس ہے, پیدا ہوتے اس کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے کہ موت تو ہوگی, تو تیاری پہلے سے شروع کریں. اب نہیں کر پائے تھے, اب سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اب کریں گے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کو جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اللہ رب العزت اللہ تعالی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں اس نیت سے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے, مجھے میرے رب سے ملاقات ہونی ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم موت کی دعائیں کریں, ہے نا. لوگ اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں موت کی دعا کروں, مجھے اللہ سے ملنا ہے, مجھے اللہ سے ملنا ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات ہونی ہے, موت حق ہے تو میں تیاری کر لوں, ہے نا. میٹنگ فکس ہے تو میں تیاری کر لوں, اپوائنٹمنٹ لے لیا گیا ہے نا. اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو کوئی اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اور جو کوئی اللہ کی ملاقات کو محبوب نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے ملاقات محبوب نہیں رکھتا. میری بہنوں, ہم جنت کی اتنی نعمتیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں نا, ہمارا اس میں آتا ہے بھائی جنت ایسی ہوگی, اس میں گھر ایسے ہوں گے, اس کے باغات ایسے ہوں گے, نہریں ایسی ہوں گی, یہ نعمت ہوگی, وہ نعمت ہوگی, کوئی گندگی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, یہ تمام چیزیں ہم سنتے ہیں. میری بہنوں پتہ ہے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے جنت میں کیا ہوگی, سب سے بڑی نعمت جو مرنے کے بعد ہمیں عطا کی جائے گی اللہ کی رحمت سے, وہ کیا ہوگی, ہمارے رب کا دیدار. تو وہ کب ہوگا, جب ملاقات ہوگی تو دیدار کریں گے نا انشاءاللہ ہم سبھی بہنیں. تو سوچئے, تو ہمیں وہ فکریں ہمارے اندر لانی ہے کہ موت کیا ہے, میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو مومن کبھی اس سے مایوس نہیں ہوتا, مومن کبھی اسے وہ خوف, ہے نا, دنیا کی محبت والا خوف اس کے اندر نہیں آتا, بلکہ خوف آتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی, اب مجھے فل تیاری کرنی ہے نا. انشاءاللہ غم, ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں, غم منانے کا اسلامی طریقہ. اب جس جگہ ہم رہتے ہیں نا, تو آپ یاد رکھیں, ہم کتنے بھی یہ بات کا دعویٰ کر لیں بھائی ہم اسلام پر ہے, ہم مومین ہیں, ہم اسلام کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے, آس پاس کا ماحول ہمیں کیا کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے, وہ اثر کرتا ہے نا. ہمارے جو رسومات آج کل شروع ہو گئے ہیں, اب غور و فکر کریے, پہلے تو یہ تھا کہ بھائی انڈین کلچر صرف ہمارے اندر آیا تھا, اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے زندگی کے مرحلوں میں ویسٹرن کلچر بھی انکلوڈ ہو گیا ہے. اور جب ہم پوچھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی, بھائی کیا کر رہے, غلط تو نہیں کر رہے, ہے نا. تو یاد رکھیے کہ صرف اور صرف اسلامی شریعت لوگوں کو لگتا ہے بھائی یہ شرط رکھی گئی ہے, یہ رولز ہے, نہیں, یہ طریقہ ہے, یہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ رب کو کون سی چیز پسند ہے, اللہ کو کون سی چیز پسند ہے, وہ طریقہ بتا رہے ہیں, اور رب کو کون سی چیز ناپسند ہے وہ طریقوں سے روکنا شریعت ہے الحمدللہ, ہے نا. تو ہم انشاءاللہ وہ سیکھیں گے کہ شریعت سے کیا ہوتا ہے, کیسے ہم غم منائیں. الحمدللہ غم کا طریقہ اگر اسلامی ہو تو اجر دیتا ہے. دیکھیے, ہے نا, ہمیں لگتا ہے بس اچھے کام کروں گی, نیک اعمال کروں گی تو ہی اجر و ثواب ملے گا, نہیں. سوچئے غم پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ, لیکن کب, کیا شرط ہے اس کی, کیا اس کی کنڈیشن رکھی گئی ہے, کیا وہ اسلامی طریقے پر ہو, ہے نا. غم پر بھی اگر اسلامی طریقہ شریعت کے مطابق ہو, الحمدللہ اللہ کی رضا کے حساب سے ہو, تو وہ بھی اللہ رب العزت اپنے غنی الحمدللہ کیا کریں گے, ہمارے لیے اجر و ثواب عطا کریں گے.
लेकिन अगर हमने उस गम में गैर इस्लामी तरीके अपनाए, गैर इस्लामी तरीकों पर उस चीज पर गम मनाया, तो वो गुनाह का सबब बनेगा। अगर हमने अपने सदमे में, अपने गम में, अपने इस हाल में गैर इस्लामी तरीके डाले, तो वो हमारे लिए गुनाह का सबब बन सकती है। तो बहुत फिक्रे करनी है इंशाअल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयतों में ये चीजें आई हैं कि गम के वक्त बहुत बेहतरीन बेहतरीन बशारतें अता की गई हैं, खुशखबरियां दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह गम के वक्त बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी दी गई है ना। कब कब दी गई है? जब उस सदमे को बर्दाश्त किया हो, जब कब सब्र किया हो। हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, तो एक औरत जिसकी औलाद का इंतकाल हुआ था, वो बहुत रो रही थी। रोना मतलब है ना, बहुत होता है ना रोने का तरीका, हम औरतों का हम जानते हैं। तो वैसे वो रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि सब्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सब्र करो। तो उस औरत ने जवाब दिया कि आप क्या जानते हो मुझ पर क्या बीती है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते ना वो कैसे मासूम थे, बेहतरीन अखलाक वाले थे। हम होंगे तो हम तो चार बातें और सुना देते हैं, ये भी नहीं देखेंगे भाई उसकी औलाद का इंतकाल हो, है ना। हम क्या कहें, भाई मैं तो तुम्हारे लिए अच्छी बात कह रही हूँ, तुमको समझ में नहीं है ना। हमारी जबान तो बाबा बहुत चलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जबानों को काबू में रखे अल्लाह के हुक्म से, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, तो सहाबाओं ने उस औरत से कहा क्या जानते भी हो कि किससे बात की थी, किससे ऐसे अल्फाज कहे थे? बोले नहीं, मैं नहीं जानती, उसको इसका इल्म नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो नबी है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो औरत फौरन दौड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए। इसने माफी चाही कि मैं माजरत चाहती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर हाल में जानता हूँ ना, वक्त जो होता है सब्र का कब होता है? जब वो सदमा, वो गम हो। देखिए सब्र हमें आ जाता है कब? जब वो तकलीफ गुजर जाती है ना। और जैसे आज अगर कोई तकलीफ पहुंची, उस वक्त तो हमने अल्लाह अल्लाह इतना शोरगुल कर दिया, इतना लोगों को सुना दिया। अब 2 दिन के बाद हम क्या कहते हैं, भाई मैंने तो अब सब्र कर लिया। जब वो चीज हमारे साथ हुई थी, उस वक्त सब्र का जो है अज्र सवाब है। उस वक्त सब्र करने पर क्या मिलती है? बशारत मिलती है, अल्लाह की तरफ से मदद आती है, अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां आती है। लेकिन जब हम पूरा कर चुके, अब उसके बाद हम दावा करते भाई मैंने तो इतना सब्र करी हूँ, मैं तो इतना सब्र करती हूँ, नहीं, है ना। तो इस बात को याद रखें कि जब भी कोई ऐसा मरहला पेश आए, हम उस वक्त फौरन सब्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सब्र सिर्फ गम पर नहीं होता है, खुशी के हाल में भी सब्र करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये दो ही ऐसे ज्यादातर होता है कि जब टेस्ट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में टेस्ट किया जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन दो सूरतों में हम क्या होते हैं? बेकाबू होते हैं। हमारी जबानें, हमारी दिमाग, हमारा जो है ना, बहुत कुछ उछलता है, अलग अलग चीजें होती है। तो हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। हमने कहा कि भाई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम है ना, मैं अपने आप को तैयार करूंगी। बीच में कुछ हमने कोशिश नहीं की, अचानक से कोई तकलीफ आई और हम बोलेंगे नहीं मैं सब्र करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। एक दिन में नहीं होता है, रोजाना हर हाल में करना है। छोटी छोटी बातों पर सब्र करेंगे, बड़ी बड़ी बातों पर सब्र करेंगे इंशाल्लाह, है ना। कुरान क्या है? यही सिखाता है कि सब्र करना। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए हमारे नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये तमाम चीजें हैं। और वो क्या सिखा कर गए हमें कि अपने गम को कैसे मनाएं, कैसा उनका तरीका था, वो सिखा कर गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमें तो पता ही नहीं गम कैसे मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए हैं। तो हम भी क्या करेंगे? हम भी बस वही करेंगे जो हमारे नबी ने सिखाया है। वो हमारे लिए सीधी लकीर खींच कर गए हैं, अब बस उसी लकीर पर हमें चलना है, उसी रास्ते पर चलना है। अब हम क्या करते हैं ना, अरे भाई मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करूं तो क्या, मैं थोड़ा वो करूं तो क्या, मैं थोड़ा ये करूं तो क्या। क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानते हैं? क्या हमारे लिए उनसे ज्यादा इल्म हमारे पास है? क्या अल्लाह को राजी करने का तरीका वो हमें कुछ कम बता कर गए हैं? नहीं, है ना। तो हम ये अमल करते क्यों हैं? जितना उन्होंने सिखाया पहले उतना तो मुकम्मल कर लें, अच्छे से कर लें, उतना काफी है।
है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमेशा याद रखिए, गम को क्या कहते हैं, गम, शोक, है ना, आप कुछ भी कह लीजिए। क्या होता है, किसी की जुदाई को महसूस करना। ये कौन महसूस करते हैं? तो अकरबात, यानी नजदीकी रिश्तेदार, घर वाले रिश्तेदार, है ना, दोस्त, पड़ोसी, सबको होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तब इंतकाल हो जाए किसी का या किसी की खबर पहुंचे तो क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने पहले सीखा कि पहले तो दुआ करनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और चीज होती है जो करी जाती है, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो आप बहनें बोलेंगी ये कैसे कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हम सोचेंगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो शुक्र पे करते हैं, तो हाँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की अमानत अल्लाह दोबारा ले गए। अल्लाह ने ही दी थी, अल्लाह ने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर कोई आपके पास कोई अमानत रखता है तो कितनी फ़िक्र होती है ना। ख़ास करके देखिए, अगर कोई पड़ोसी ने आपके पास कुछ चीज़ रखा दी कि बहन देखो मैं 2 दिन के लिए नहीं हूँ, ज़रा इसको सँभाल लेना। हम कितना गौर करते हैं, हमारे घर का भले 50 चीज़ें टूट जाए, चल जाएगा, लेकिन बच्चों को कितना दूर करते हैं। भई वो सामने वाली का है, प्लीज़ हाँ बच्चों उसके पास मत जाना, उसको बिल्कुल खरोच नहीं आनी चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं ना। लेकिन जब वो ले जाती है, हम एक सुकून की सांस लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, जिसकी अमानत थी वो ले गई, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी अमानत थी उसी के पास पलट कर गई है ना। लेकिन अब इतना तो हमारा ईमान मजबूत हुआ नहीं है, ना खुद का हुआ है, ना हम किसी का कर पाए हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हम फिलहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल सकते हैं। जबानी तौर पर तो बोल ही सकते हैं, दिल में अगर बोलना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? ये तो दुआ कर ली अल्हम्दुलिल्लाह हमने, है ना? और हमें क्या करना है? कोई अफ़सोस नहीं करेंगे, अल्लाह जान जवान लड़का था, है ना? जान जवान था, अब उसके माँ-बाप का क्या होगा? अकेला कमाने वाला था, अब उसका घर कैसे चलेगा? मासूम बच्चे थे, अभी-अभी बच्चा पैदा हुआ था, अब उस बच्चे का क्या होगा? है ना? हम क्या करते हैं? हम ये तमाम चीज़ें कहते हैं, ये क्या है? नऊज़ुबिल्लाह, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह की ज़ात पर सवाल उठा रहे हैं, है ना? अल्लाह हमसे बेहतर जानता है और वो सब कुछ अता करने वाला है ना? हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नऊज़ुबिल्लाह ये बातें कहकर हम क्या करते हैं? हम सवाल करते हैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। ये कुफ्र के अल्फाज़ होते हैं जो हमारी ज़बान से निकल आते हैं। तो कोई अफ़सोस नहीं करना, हाँ, गम ज़ाहिर कर सकते हैं। गम होता है कि बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, है ना? सपोर्ट थे अपने माँ-बाप के अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर लेकर चलते थे, अपनी बीवी-बच्चों का ख़याल रखते थे, है ना? ये अल्फाज़ हम कह सकते हैं। फिर तकदीर को नहीं कोसेंगे, कितनी बार होता है ना, भई अभी-अभी तो जो है औलाद हुई थी, अल्लाह ने वो एक ही तो औलाद इतने मुश्किल से हुई, वो छीन ली। लोगों के पास इतनी औलादें हैं, मेरी एक ही औलाद थी, अल्लाह ने वो ले ली। एक बेटा था या एक बेटी थी, वो ले ली। हाँ, बड़ी मुश्किल से घर बसा था, उजड़ इन बहुत सारी बातें होती है ना, है ना? माँ-बाप का साया था, एक माँ नहीं थी, अब तो वालिद भी नहीं रहे, या वालिद थे, अब माँ नहीं थी, अब वो भी नहीं रहे ना, कितनी बार होता है। तकदीर को नहीं कोसेंगे। है ना? और हम ही मिले थे क्या? मैं ही थी क्या? मेरा ही घर मिला था क्या अल्लाह? मेरा ही रिश्ता, मेरा ही बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी सास ही मिले थे क्या? है ना? ये तमाम बातें भी नहीं कहेंगे। हम तो क्या करेंगे? ये पढ़ने से पहले कुछ और रिएक्शन कर देते। कौन-सा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से पहले क्या करते? है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू में किया ना, अलग-अलग रिएक्शंस हो जाते हैं, वो नहीं करना है, बस दुआ करनी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ क्या करेंगे? तो अगर कोई शख्स ऐसे है जो मौता के पास है ना? जिनकी मौत होती है, उनके करीब है, तो क्या करेंगे? सब्र के साथ, हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैयत की आँखें बंद करनी है। क्योंकि क्या होता है, आँखें जो है जब रूह निकाली जाती है, तो आँखें जो है उस रूह का पीछा करती है, ये हदीसों से साबित है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करना है, उनकी आँखें जो है बंद करनी है और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। मुझ तक खबर भी आई, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ली, अब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए जो सवालात होने वाले हैं, वो आसान करे, है ना? ये दुआएँ हम कर सकते हैं उनके लिए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उनकी आँखें जो है बंद करनी है। तीसरा काम जो होता है वो होता है करीबी रिश्तेदारों को इत्तला देनी चाहिए। क्यों? हम सोचते हैं ना भाई क्यों देनी है? तो इसलिए क्या वो शिरकत कर सके अल्हम्दुलिल्लाह किस लिए? ताकि, है ना?
जो मैयत है उसकी तैयारी कर सके, गुस्ल वगैरह का इंतजाम कर सके, है ना, तदफीन का इंतजाम कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह कब्रों का जो है, ये तमाम चीजों में, क्योंकि घर वालों को गम इतना होता है कहीं ना कहीं, है ना, कितनी बार होता है घर का कोई मर्द हजरात हो तो भाई और कौन करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार आ जाते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मदद हो जाती है, पड़ोसी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका ख्याल रखे कि तरीका सिर्फ सुन्नत हो, है ना, ये नहीं कि भाई हमने छोड़ दिया उन पर, अब वो जैसा करना चाहे वैसा नहीं। हमारा एक हमेशा पॉइंट होना चाहिए कि जो कुछ भी होगा सुन्नत पर होगा, है ना। क्या होगा, ये चौथी बात पर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या गुस्ल, तदफीन, तफसीन के ख्याल, जो कुछ भी काम हो कब्र का, हर हाल जो भी मरहला होता है मौत के बाद, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सुन्नत पर हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बात का ख्याल रखना होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये उनका आखिरी सफर है, और सबसे बेहतरीन सफर तो अब शुरू हुआ है ना, वो अल्लाह से मुलाकात के लिए निकलेंगे। मेरी बहनों आप सब जानती होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं जानते अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे जैसे होंगे, जिसका इल्म जो है पहले कमजोर था, अब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़ रहा है, तो उसमें पता चलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि जब कब्ज की रूह निकाली जाती है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह नेक रूह हो, तो फरिश्ते जो है ना, मौत के फरिश्ते उनके पास खूबसूरत लिबास में, खूबसूरत शक्ल से आते हैं, उनको दुआएं देते हैं, बशारतें देती है, अल्लाह का वादा सुनाती है जो बशारतों वाला है, खुशखबरी वाला है, और उनको लेकर आसमानों से गुजरते हैं, पहले आसमान पर लेके जाते हैं, और अगर नेक रूह है तो उसकी खुशबू से पहले आसमान के फरिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह उसे पहचानते हैं, है ना। दरवाजे पर जब रुकते हैं, जब पूछा जाता है कौन है, तो नाम बताया जाता है ये है, तो उनकी खुशामदी वहां पे भी होती है, उनको वहां वेलकम किया जाता है। सोचिए, पहले आसमान के फरिश्ते वेलकम कर रहे हैं, फिर वहां से दूसरा आसमान, सेम प्रोसेस होता है ना, पूछा जाता है कौन है, तो ये फला रूह है, ये नेक रूह है, फिर उनकी वहां पे भी वेलकम की जाती है, खुशखबरी दी जाती है, फिर ऐसे करते 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 सातों आसमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मुलाकात के लिए, फिर अल्लाह के हुक्म से जहां उस रूह को रखा जाता है वहां पहुंचाया जाता है। तो बताने का मकसद ये तो सफर निकला है ना पूरा, तो इसकी तैयारी भी कैसी हो, बेहतरीन होनी चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या हो, जनाजा जो कि हम तो औरतें हैं, हम तो नहीं जा पाती है दफन के लिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे के साथ में, लेकिन हम क्या है सीखेंगे तो हम अपने घर के मर्द हजरातों को, औलादों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं ना, क्या करें, जनाजे को इज्जत और एहतराम के साथ उठाएं, है ना, कोई शोरगुल नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। आजकल कहीं ना कहीं हमने देखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत करे। अभी कुछ महीनों पहले एक वीडियो आया था कि भाई कोई है ना मुसलमान का ही घर दिखा रहा है, मुसलमान ही दिखा रहा है कि भाई पूरे वो बोलते ना बाजे गाजे के साथ जो है कराया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत करे, है ना। ये तमाम चीजें मना है, शोर करना मना है, सुकून से इत्मीनान से लेके जाना है, आवाजें करना मना है ना, आवाज बुलंद करने तक मना किया गया है। तो कैसे ले जाए जनाजे को, इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जाए, और उसे अल्लाह के हुक्म से दफना दे। ये तमाम चीजों का ख्याल किसे रखना है, घर वालों को रखना है, और घर वाले अगर इसके लिए नहीं तैयार हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार, जान पहचान वाले जो भी है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए कोशिश की जाए मेरी बहनों, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीयत ना माल और लत्ते का करते हैं, हमें पता है ना भाई, मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरा जेवर, मेरा घर, मेरा ये पैसा वैसा जो है वो इस्लामी शरीयत से बच जाएगा, मेरे वारिसों को मिल जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। भाई मेरे मरने के बाद जो है हम क्या दे अपने औलादों को विरासत में, दीन की दौलत दे। क्या मेरे बच्चों जैसा मैं दीन पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही थी, आप भी वैसी करें, इस्लामी तरीके पर क्या हो, मेरी जो है मैयत का इंतजाम हो, शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, ये हम विरासत में वसीयत करके जाए अपनी औलादों को, अपने घर वालों को। आप सोचेंगे भाई अभी से अगर हम बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे भाई अभी मौत आ रही है, कितनी बार ये होता है, कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं, कुछ लोग गमगीन हो जाते हैं, है ना? नहीं, ये हकीकत है जिसको हमें फेस करना है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये तमाम चीजें तो हो गई जो हमें करनी है। अब जो नहीं करनी है, जो आम तौर पर होता है, हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, ना देखा हो, लेकिन ये है जो आज हमारे मुआशरे में मुसलमानों के बीच होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से कहीं ना कहीं बहुत शायद कम हो गया है,
لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ کچھ رسومات ہے جو ہو رہے ہیں، تو پہلے جانیں گے کہ کیا ہے تاکہ اس سے ہم بچیں انشاءاللہ، ہے نا؟ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، بالوں کا نوچنا ہے نا، کتنی بار غم سے نہیں عورتیں بالوں کو کھینچ، دیکھیے میں مرد حضرات کے حساب سے نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نے بہت کم ہوگا کہ ہم نے کسی مرد کو یہ تمام چیزیں کرتی ہوئی دیکھے ہیں، زیادہ تر عورتوں میں ہی ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے لیے میں اس حساب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو بالوں کا نوچنا یہ دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن عورتوں کا بتانے کا مقصد ہے کہ زیادہ تر وہی ایموشنل ہو کر کے کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں کرتی ہیں۔ بالوں کا نوچنا منع ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، اس کا منع کیا گیا ہے، ممنوع ہے۔ گالوں کو مارنا، جو تھپڑی اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں، کوئی ان کو مارتا ہے نا، یا کچھ ایسے طریقے سے کرتے ہیں، یا چہرے کو خراب کرنا، سینے کو پیٹنا، چھاتی کو پیٹتے نا، ہائے ہائے کر کے جو لوگ پیٹتے ہیں وہ، بالوں کو بکھرانا، پورے بال کھول کے ایک دم جیسے وہ بولتے نا، آلموسٹ یہ ماتم کا طریقہ ہو جاتا ہے، جو اجازت نہیں ہے اسلام میں، اسلامی شریعت میں اللہ رب العزت کے حکم سے ماتم کا نہیں ہے، غم منانے کا طریقہ بہت اچھا، بہترین، سمپل سا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، دوسروں کے رسومات کو، غلط طریقوں کو، اور میں کسی اور کو بلیم نہیں کروں گی، کسی نے ہمیں زور زبردستی یہ کرنے کو نہیں کہا تھا، ہم نے خود چیزیں کرنا شروع کی ہے نا؟ تو ہم کسی اور کو بلیم نہ کریں کہ بھئی یہ ان کے طریقے کا ہم کریں، نہیں، کسی نے ہمارا گلا پکڑ کر نہیں ہم سے کروایا تھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ چوڑیوں کا توڑنا، اور یہ ہم سب بہنوں نے کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی بیوی ہوگی جس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو علم عطا کرے، اپنی ہدایت میں رکھے، وہ ان کا ہاتھ لے کر جا کے نا میت کے پاس جو ہے چوڑیاں توڑوائی جاتی، یہ مسلمانوں کے گھر کا حال ہے، سوچیے، ہے نا؟ چوڑیوں کا توڑنا، کپڑوں کا پھاڑنا، کوئی کچھ چیز کا ہے نا چھوڑ دینا، یعنی جو حلال چیز ہے، ایک فلاں قسم کا رنگ جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کیوں؟ بیوہ ہے یا میت ہو گئی ہے گھر میں، تو اب سال بھر یہ، یا میت ہوئی ہے گھر میں بلکہ یہ رنگ نہیں آئے گا، ہے نا؟ یا ایک فلاں رنگ ہی رہے گا، یہ تمام چیزیں یعنی حلال کو اپنے پر حرام کر لینا، یہ چیزیں بھی منع ہے۔ چیخنا، چلانا، میت کے پیچھے بھاگنا، یعنی بھاگتے نا یہاں وہاں بھاگتے ہیں فوراً، ہے نا؟ یا ولولہ کرنا، چیخم چلی کرنا، الگ الگ طریقے سے کرنا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، اس کے لیے یہ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحاباؤں نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں انہوں نے کبھی یہ طریقے کیے، ہے نا؟ تو ہم بھی ان سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک حدیث بتاتے چلتی ہوں، الحمدللہ ایک الحمدللہ صحابہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو ہے الحمدللہ، ہے نا، ہم سب جانتے ہیں ان کا بھی جو ہے وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا الحمدللہ اللہ کے حکم سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان کا جو موت کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گود میں تھے، ہے نا؟ کیا تھے؟ ان کے ہاتھوں میں تھے، مطلب، اور کیا ہوا؟ نزا کا جو ہے نا عالم وہ ایک دم نزدیک تھا، یعنی موت ایک دم قریب ہو جاتی ہے نا، نزا کا عالم کہتے ہیں نا اسے، وہ تھا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ امن، ہے نا، ایک دم مطلب الگ سے ایک دم وہ وقت ان کا قریب تھا، اور آخری وقت میں وہ ہچکیاں لے رہے تھے، کون؟ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لے رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو اسے کیا پتا چلتا ہے؟ جب غم کا موقع ہو، تکلیف کا موقع، تو آنسو بہ سکتے ہیں، رونا منع نہیں ہے، آنسو کا بہنا منع نہیں ہے، لیکن کیسے، ہے نا؟ ایک دم مطلب ہے نا ہمارے جیسا نہیں جو ہم دیکھتے ہیں ویسا چیخنے والا، چلانے والا، افسوس ہائے ہائے ویسے والا نہیں، بلکہ آنسو بہ سکتا ہے، وہ انسانی اس میں ہے، ہمارے اندر بنا ہوا ہے، بشر جو ہے وہ روتا ہے، وہ ہماری صفت میں آئی جاتا ہے، ہماری قدرت وہ ہے، اس کی اجازت ہے الحمدللہ، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل کیا ہے؟ دل انتہائی غمگین ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ مبارک میں ان کا بیٹا ہے جو نزا کی حالت میں ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں روتی ہے، دل انتہائی غمگین ہے، اور وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے، اے ابراہیم تیری جدائی میرے
जुदाई में हम गमगीन हैं। सोचिए, बेटा उनका नबी है, पूरे आलमीन के नबी है, उनके बेटे का वो हाल है, तो क्या हो रहा है? बस आंसू जारी है, दिल गमगीन है, रो रहे है ना, लेकिन राजी है, अल्लाह से राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम जानते हैं, हमारी आयतें गुजरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनको जो है मुशरिक जो है वो लोग क्या करते थे, नौजुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे कि अब उनकी औलाद नहीं थी ना, क्योंकि वहां हमारे माशरे में क्या कहा जाता है, लड़के ही क्या है, वारिस है, लड़के ही क्या है, उन्हीं से खानदान चलते हैं, है ना, तो उनको कहा जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी शान में उतार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान से हमें पता चल रहा है तमाम चीजें, तो कुरान से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्या है, आंसू जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से रिवायत है कि ये क्या है, बेशक ये रहमत है, अल्लाह जिनसे ताल्लुक चाहता है उनके दिलों से इस रहमत को डाल देता है, उनके दिलों में क्या करता है, इस रहमत को, जो आंसू जारी होते हैं ना, उसको डाल देता है। अल्लाह उन्हीं बंदों पर रहम करता है जो दूसरे पर रहम करते हैं, है ना, यानी रोने की इजाजत है, रो सकते हैं, लेकिन कैसे, खामोशी से, है ना, रोना आता है, गमगीन होती है, आंखें भरती हैं, आंखों से आंसू जारी रहते हैं, इजाजत है, लेकिन कैसे, जैसे कि हम लोगों को देखते हैं वैसे तरीके से नहीं, है ना। आता है रिवायतों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसुम का जब जनाजा रखा गया था, उनको जब दफनाया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र के करीब बैठे थे और उनके आंसू जारी थे, लेकिन कैसे, खामोशी आवाज से, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी फरमाती है कि साद बिन माद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के पास पहुंचे, और क्या हुआ, वो कहती है, अल्लाह उस जात की कसम जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जिनके हाथों में क्या थे, उनके हुजरे से क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी रोने की। कैसी रोने की आवाज, अ, रोने की, रोकने की आवाज आ रही थी, यानी रोना आ रहा है, लेकिन जब उसको रोकने की हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आवाज निकलती है ना, जब हम बहुत रोते हैं आहिस्ते से, तो भी इसको रोकने में एक आवाज निकलती है, तो उतनी आवाज की इजाजत है, ठीक है। रोते रोते एक हल्का सा, जो हम खामोशी से रोते हैं, उसको भी रोकने में एक आवाज आती है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि एक आवाज जो थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की, वो उनके वालिद है, उनकी आवाज से वो है ना, वो तो जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कह रही है कि वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कैसे, खामोशी से, और अपने रोने को रोकने की कोशिश करे, वो आवाज उनके कानों तक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें क्या करना है, जब भी हम मौत की खबर सुनेंगे, मौता के बारे में जानेंगे, मैयत के घरों में जाएंगे, लोगों के से मुलाकात के लिए जाएंगे, है ना, जनाजे की जनाजों में जाएंगे, किसी को दिलासा देने, तमाम चीजों में क्या करेंगे, मौत को देख के मौत को याद करेंगे, मौत को देखकर मौत को याद करेंगे, क्या याद करेंगे, कि इसके साथ क्या होगा, है ना, हम क्यों सोच रहे हैं इनके साथ क्या होगा, क्योंकि फिर हमें याद होएगा कि हमारे साथ क्या होगा, इनकी तैयारी क्या थी, तो हमें याद आएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी, इनका तो हो गया मामला, इनके साथ जो होगा वो तो होगा, इनकी तैयारी जो थी अब वो खत्म हो गई, अब इनके पास अब वक्त आगे नहीं है तैयारी का, मेरे पास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त दिया, अब मैं फिक्र करूं, वो कैफियत को समझे, वो मौत के हालत को, वो तमाम बातों को, भाई मौत आएगी, वो वक्त कैसा होगा, मेरे कलमे पे मौत हो, मैं ईमान के साथ मरूं, मौत के बाद जब हाल होंगे तो कैसे होंगे, कब्र में डाली जाऊंगी तो क्या होगा, ये तमाम फिक्र फौरन हमारे अंदर है ना, वो आंखों के सामने जहन में घूमते रहना चाहिए, तो हमारी फिक्रें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। हम क्या करते हैं ना, किसी की मौत की खबर सुनते अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, है ना, मर्द हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह तदफीन तक जाते हैं, औरतें जो है घर तक जाती हैं, दिलासा देती है ना, ताज़िया जिसे कहते हैं, लोगों को समझाना करना, तमाम चीजें, लेकिन कहीं ना हम भूल जाते हैं अपनी मौत को याद करना, कि भाई ये जो आज यहाँ हुआ है कल मेरे साथ भी होगा, है ना, तो इसको हम याद करेंगे इंशाल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी मैयत पर हम जाते हैं ना, हम बहुत तमाम फिजूल काम तमाम कर लेते हैं, है ना, फालतू की बात है, बहुत पुराने पुराने लोग मिल जाएंगे ना, क्योंकि क्या होता है, हमेशा तो जो मुलाकात नहीं करते ना, तमाम पूरा खानदान उस वक्त जमा हो जाता है, तो हम पूरी बातें करेंगे, हर चीज की, मना नहीं है कि भाई आप उनसे सलाम दुआ खैर खबर नहीं कर सकते,
لیکن ہم کیا کرتے ہیں نا، تمام وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو شاید کچھ گھر والوں کو تکلیف دے. ہاں تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک مومن کو کیا کرنا ہے الحمدللہ، ہے نا. تو ہم کیا کریں گے، تذکرہ کریں گے، یعنی بات چیت کریں گے. کیسی؟ اچھی بات. پہلے تو کوشش کرے کہ چپ چاپ بیٹھ جائیں، کیونکہ ہماری زبان کا ہمیں ہی نہیں پتا بھائی کب کیا بول جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی الفاظ نکلے تیرے حکم سے صحیح نکلے، ہے نا انشاءاللہ. تو کیا کریں گے، جو ان کی موت ہوئی ہے ان کی نیکی کا ذکر کریں گے، اچھے سے الحمدللہ. وہ کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، شاید آپ کو لگا ہوگا، پتا ہوگا بھائی ظالم تھا. میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، ظالم تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ظلم کا ذکر کریں، بھائی بہت ظالم تھا، بہت غصے والا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا. نہیں، جو ان کا تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، ان کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جائے گا. اب ہم کوئی نہیں ہوتے ان کی وہ تمام باتیں بتانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل کے بیٹے، یعنی تمام جتنے منافق یا مشرک جو تھے، کافر جو تھے، ان کے کتنی اولاد ہے نا، کیا تھی، ایمان پر تھی. لیکن جب ان کے گھر والوں کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو جا کے وہ باتیں نہیں سنائی. اور آپ سے جب کسی نے کہا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا ہے کہ ان کے بارے میں، موت جو میت ہے اس کے بارے میں برا مت کہو، اچھی باتیں کرو. اب یہ گھر والوں پر بھی آتا ہے، رشتے داروں پر بھی آتا ہے. کیوں؟ جب ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں کہتے ہیں، خاص کر کے گھر والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مردے کے بارے میں کیا کرو، بھلی باتیں کہو. گھر والوں سے کہتے کہ اچھی باتیں کہو. کیوں؟ کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اگر وہ جو بھی انہوں نے کیا ہوگا زندگی میں، ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے. نیک انسان تھے، اچھے پڑوسی تھے، سب کا حق ادا کرتے تھے، ہے نا. آمین ہو رہا ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہے نا. الحمدللہ کی شکر گزار، جو بھی اچھی بھلی باتیں کہیں گے انشاءاللہ، ہے نا، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ان کے حق میں بہترائی کرے الحمدللہ. دوسرا کیا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ہے نا. کیا کریں گے، دعا کریں گے. آپ سب جانتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی عورت ایمان پر آتی ہے نا، جو ہے کفر سے کیا ہوتی، ایمان پر آتی، تو وہ بیعت کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک وعدہ کرتے نا، ایک بیعت کرتی. اس بیعت میں کیا کہا جاتا معلوم؟ اس بیعت میں شرط رکھی جاتی ہے کہ پہلی تو یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ کفر کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں گی، ایمان پر ہوگی، ایمان کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گی. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ وہ چہرے کو نہیں نوچیں گی، چہرے کو نہیں خراب کرے گی، بالوں کو نہیں نوچے گی، کپڑوں کو نہیں پھاڑے گی. یعنی اسلام میں جب آ گئے ہو تو یہ تمام رسومات جاہلیت والے ہیں، ان کو تم نہیں لاؤ گی. سمجھ میں آتے؟ سوچیے، بیعت کی جا رہی ہے ایمان پر آنے پر، ہم تو ایمان پر ہے، تو یہ تمام اعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا کرے، ہے نا الحمدللہ. پھر آتا ہے حدیثوں میں کہ بینا، ہے نا، بائن کرنے والی ایک عورتیں نہیں کچھ ہوتی ہے جو اتنا روتی ہے، اتنا افسوس کرتے ہوئے روتی ہے، ارے نیک تھا چلا گیا، فرما بردار تھا چلا گیا، ماں باپ کا سہارا تھا چلا گیا، اب کون سنبھالے. نہیں، کوئی کوئی عورتوں کو ہم نے سنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت ہے، شاید ہم نے بھی کبھی کیا ہو، ہم توبہ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ حدیثوں سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بائن کرنے والی عورت، یعنی ایسی عورتیں جو ایسے روتے روتے جو بیان کرتی رہتی ہے نا، بولتی رہتی ہے ایسی باتیں، کفر کے الفاظ، ایسی عورت اگر توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن کھڑا کر کے اس کو زندق کا پیجامہ اور کھجلی خارج کا کرتا پہنایا جائے گا جہنم میں. یعنی تکلیف دہ والا لباس ہوگا، اتنی تکلیف والا لباس اس کو پہنایا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب توبہ کرے، کبھی نہ کبھی اگر ہم سے ہوا ہو تو، ہے نا. تو کیا بتایا گیا ہے کہ میت پر کوئی غیر شرعی رونا نہیں کر سکتے ہیں. جو خاموشی والا رونا ہے بس اسی کی اجازت ہے. میت پر اگر ہم جو ایسے دہاڑے مار کر رونا، جو غیر شرعی طریقے سے رونا کرتے ہیں، تو میت کو بھی عذاب ملتا ہے. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کریکٹ کر کے کہا کہ ہاں، عذاب کب ملتا ہے؟ جب کسی کو پتا ہے، فار ایگزامپل میں اپنا بتاتی ہوں، اگر مجھے پتا ہے کہ میرے گھر والوں میں یا میرے خاندان میں یہ رسم و رواج ہے کہ ایسے بولتے ہیں نا، چھاتی پیٹ کر یا اسی طریقے سے جو ہے میت پر رویا جاتا ہے. کبھی شاید میں نے کی ہوں یا نہیں کی ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کو بتائی بھی نہیں، یہ چیز کو روکی نہیں. اب میرے مرنے پر اگر میرے گھر والے، میرے خاندان والے یہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ، اس کا عذاب مجھ پر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان سے منع ہی نہیں کیا. تو میرا کام کیا ہے؟ پہلے تو میں خود روک لوں،
खुद तौबा कर लूं और मैं उनसे भी कह कर रखूं कि अगर अल्लाह के हुक्म से मौत तो आनी है, आज आएगी, कल आएगी, सालों बाद आएगी, जब भी हुक्म होगा तब आनी है। जब कभी भी मुझे मौत आती है, ये तरीके से मेरी मैयत नहीं जाएगी, ये तरीका इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, इस तरीके से मेरी मैयत नहीं रुखसत होगी, है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल, अब मना करने के बावजूद अगर वो करते हैं तो उनकी पकड़ होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हिफाजत कर लेंगे, है ना। लेकिन बताना, समझाना, बोलना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ऐसी हालत में बहुत होता है ना कि लोग कहते हैं भाई अफसोस जाहिर नहीं कर रहे, हम नहीं मना रहे। देखिए, और यहाँ पर होता है कि भाई कोई कोई होते हैं ना कि भाई किसी के घर में मैयत हो गई, अब 2-3 दिन बाद जो है वो काम पर लौट गए, या उनके घर से हंसी की आवाजें आ रही है, खिलखिलाने की आवाज आ रही है, बच्चों के साथ खेलते हैं, या अच्छा माहौल होता है, या बाहर वो निकलती, तो लोग नहीं ताजुब करते हैं, उस पर अजीब अजीब किस्म की बातें, भाई इसके घर में अभी अभी तो मौत हुई थी, ये कैसा घर से बाहर निकली है, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, है ना। कैसे हो गई, अभी 2 दिन पहले तो इसके घर में मैयत हुई थी, माँ बाप की हो, सास ससुर की, अच्छा सास की थी ना इसके लिए निकली, माँ की होती तो नहीं निकल, नहीं। देखिए, शोक मनाना, गम मनाना सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए इजाजत है, 3 दिन के लिए। 3 दिन से ज्यादा वो भी औरतों के लिए है, क्योंकि औरतें इमोशनल होती है, ये हदीसों में आता है, सहाबियों के से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी रिवायतों में आता है, सहाबियों के वाक़े आते हैं कि एक सहाबिया का जो है बेटे का इंतकाल हो गया था, उसके इंतकाल के तीसरे दिन उस सहाबिया ने एक किस्म का अत्र मंगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था? देखिए, हम जानते हैं ना हमारे लिए अत्र जो खुशबू होती है, वो मना है, लेकिन कब? जब वो महकती है। अरबियों में 2 किस्म के अलग-अलग होते थे। एक वो होता था जो निशान पड़ता था उससे। मैं एक अत्तर ही कहूँगी ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है? यानी उससे क्या होता था, निशान होता था और उसकी खुशबू आती थी, लेकिन कब? जब उसके करीब हम जाते। यानी जैसे अगर मैंने आस्तीन पर लगाई हूँ, अब वो आस्तीन जब मैं अपनी नाक के पास लेके जाऊँगी ना, तब उसकी खुशबू आएगी। मेरे बाजू बैठे हुए शख्स को उसकी खुशबू नहीं आएगी, यानी वो महकता नहीं है। और एक वो होती है खुशबू जो महकती है, तो हम औरतों को, मोमिनों को, मोमिन औरतों को वो मना है, ठीक है? तो उन्होंने वो वाला मंगवाया और लगाया, क्यों? तो उन्होंने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं है, सिवाय एक बीवी की अपने शौहर के लिए, जो साबित है कुरान से, 4 महीने 10 दिन। उसके अलावा बेटा हो, बाप हो, भाई हो, है ना, चाचा हो, नाना हो, मामा, कोई भी हो, या औरतों में कोई उनके रिश्तेदार हो, 3 दिन से ज्यादा का गम नहीं मना सकते। हमारे यहाँ तो दिनों में गिनती जाती है, सालों में गिनती जाती है, साल साल भर कुछ नहीं होता, तमाम अच्छे अमाल, खुशखबरी, बशारत वाली चीजें बंद कर दी जाती है। शादी है, पोस्टपोन कर दो, मैयत हो गई घर में, साल भर मैयत का गम मनाएंगे, साल भर शादी नहीं होगी, साल भर अच्छे कपड़े नहीं आएंगे। ये जो हुक्म है मनाने की, जो हलाल है, उस पर हम, उसको हम अपने आप पर हराम कर लेते। भाई ईद कैसे मनाएंगे, हमारे घर में मैयत हुई, आपको पता है इसका हुक्म अल्हम्दुलिल्लाह, ये साबित है क्या, 3 दिन में ईद है। अगर आप जो है आज मैयत हुई है, 3 दिन बाद भी अगर ईद है तो आपको मनाना है, क्योंकि इसका हुक्म हमें दिया गया है ना, ईद खुशी मनाने का दिन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वो रमजान ईद भी गई, बकरी ईद भी हम मनाएंगे, भाई साल भर तक कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी, खास लिबास आ जाते हैं, खास तरीके से मना कर दिया जाता है, फला किस्म के ही कपड़े पहनेंगे, फला किस्म की शक्लें बनाएंगे, भाई कुछ नहीं करेंगे, किसी दावत में नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हर दावत में ही जाना है, सब करो, नहीं, मतलब क्या है, जो ये हमने अपने पर हलाल चीजें हराम कर ली है ना, इसकी इजाजत शरीयत नहीं देता है ना। तो जो चीज है वो क्या है, एक बीवी के लिए, शौहर के लिए गम मनाना है, इजाजत है, उसके अलावा 3 दिन से ज्यादा वो किसी के लिए गम नहीं मनाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को हम जहन में बिठा ले। एक बहुत मशहूर हदीस से रिवायत सबको पता है, ये वाकया कुछ दिन पहले भी हमारी क्लास में ये बताया गया था। एक सहाबिया के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आता है, उम्मे सुलैम रहमतुल्लाह अन्हा के बारे में, कि उनके शौहर जो है बड़े सफर के बाद जब घर आए, तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह खुद तैयार हुई थी, शौहर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई, रात का वक्त गुजरा, जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिश्ता रखा अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी का जैसा होता है। सुबह फजर की नमाज से पहले, है ना, कौन है उनके शौहर, अबू तलहा रहमतुल्लाह अलैह, सॉरी, रज़ी अल्लाह अन्हु,
है ना। फजर की नमाज से पहले उन्होंने अपने शौहर से सवाल किया कि अगर तुम्हें कोई चीज देता है, कोई अमानत देता है, तो तुम उसे कैसे लौटाओगे, क्या करोगी? तो बोले जिसकी अमानत है मैं उसे वैसे ही लौटा दूंगा या उससे भले तरीके से लौटाऊंगा, अच्छे से लौटाऊंगा। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या यहाँ पर क्या बता रहे बताइए, इसमें हमें बहुत बेहतरीन सीख मिलती है कि हमें क्या करना है, कैसे मनाते। जरूरी नहीं हर एक को गम मनाना ही है, भाई हाय हाय करते रहना है, अफसोस करते रहना है, रोना धोना है, नहीं, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सिवाय बीवी के। तो उन्होंने सोचिए क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि कोई अमानत हो तो क्या करे, तो बोले मैं लौटा दूंगा या भले तरीके से। तो वो कहती है मैं आपको एक खबर देती हूँ, कल आप हमारे बेटे का, जो एक बेटा हमारा था उसका इंतकाल हो गया, मैंने उसे नहला दिया और उसे दफन करवा दिया। सोचिए एक माँ, उसका बेटा इंतकाल हो रहा है, बाप घर आया है। हमारे घर में तो ये होता है, बच्चे से अगर एक ग्लास भी गिर जाए, टूट जाए, तो जैसे ही शौहर आते तो हम तो भाई, ये मैं अपने बारे में ही कह रही हूँ कि हम तो पूरी बोलते ना सुबह से लेकर रात तक, जब तक शौहर घर पे नहीं है, एक एक मिनट की खबर उनको देते हैं, है ना। लेकिन जब ये वाक्य मैंने सुनी तो कहीं ना कहीं मुझे इतना मतलब इस बारे में ये हो कि भाई हम क्या करते हैं। सोचिए वो थके हारे ना, क्योंकि अगर उस वक्त उनको खबर देती तो वो और गमगीन होते, तकलीफ, इंसान सफर से आया थका हुआ होता है ना, आराम नहीं कर पाता, तकलीफ में होता, बीमार पड़े, कुछ ना कुछ होता। तो उन्होंने क्या किया, सब्र किया, सब्र करके सुबह बताया और वो गमगीन हुए। हजरत अबू तलहा गमगीन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बीवी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उन्होंने दुआ दी, क्या उन्होंने सब्र किया, और उस सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो आप लोग साथ में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह आपको क्या दे, नेक औलाद अता करेंगे। सोचिए, है ना। इससे पहले हमने सीखा ना कुरान में, जब हम कोई बड़ी मुसीबत पर सब्र करते हैं, जैसी हालात में सब्र करते हैं, जो बशारतें मिलती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। जब वो बेटा उनसे चला गया, अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, वो सब्र किया उन्होंने, वो राजी थी, तो उन्हें क्या हुई, नेक औलाद की खुशखबरी दी गई। सोचिए, तो हमें कितना सब्र करना है। ये तमाम चीजें कुरान में मौजूद है, ये चीजें कुरान में, सुन्नत में आती है, हदीसों में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम ना सुनते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते हैं। हमें लगता है कि हम जितना कह रहे हैं ना उतना ही हमारे लिए काफी है। नहीं, हमारे यहाँ तो गम का तस्वुर ही अलग है। क्या करते हैं, है ना। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जिसके घर में मैयत होती है, घर वालों के अल्फाज निकलते, भाई ये मर गया, मेरे को भी इनके साथ दफना दो, ये चले गए, मैं इनके साथ चली जाऊं, मैं जी कर क्या करूंगी, अब हमें कौन पालेगा, कौन देखेगा। अच्छा, ये तो चलो घर वालों का हाल होता है, जो उनके आसपास होते हैं ना, अगर वो थोड़े शांत भी हो जाए तो ये आकर के कहना शुरू कर देते, अरे ये कैसे जिएंगी, क्या होगा, ये अच्छा भला घर था, मर्द कमा रहा था, औलाद मिली थी, इतनी प्यारी औलाद थी, ऐसा था वैसा था। यानी जो इंसान गम नहीं, मातम नहीं भी कर रहा ना, उसको और छेड़ छेड़ कर, बोल बोल कर क्या करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, है ना। ये तमाम चीजें की जाती है। एक सेकंड में म्यूट कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये तमाम चीजें इस्लामी शरीयत से अल्लाह को राजी करने वाली नहीं है, बल्कि ये नापसंदीदा है, ममनू है, मना किया है। तो हम तरीका सीखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया तमाम चीजें घर वालों के बारे में, रिश्तेदार भी इसमें आ गए, हम भी आ गए, दोस्त सब आ गए। एक और चीज होती है जिसे ताजियत कहते हैं, ये क्या होता है, कितनी बार पहले मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ना, ये टॉपिक ही इसका लेने का मकसद ये था कि जब मैं कहूंगी, जब पढ़ूंगी, सुनूंगी, सीखूंगी, बोलूंगी, तो मेरे अंदर अमल करने के लिए थोड़ी सी, बोलते ना, एक छोटी सी कोशिश होगी इंशाल्लाह। तो हमेशा याद है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं ना, वो हम बोले, जब बोलेंगे ना तो हमारे अंदर अमल करने में आसानी होती है इंशाल्लाह। ठीक है। ताजियत किसे कहते हैं पता है? ताजियत कहते हैं कि जब हमारे किसी मुसलमान भाई या बहन को कोई नुकसान पहुंचे, तो उसे तसल्ली देने, उसका गम हल्का करने, उसको इत्मीनान और राहत पहुंचाने के लिए जो अमल हम करते हैं उसे ताजियत कहते हैं। किसी के घर में इंतकाल हो गया, हम गए, उनको दिलासा दे रहे, उनको समझा रहे। अब हम तो, मैंने कहा ना, हमारे अल्फाज पूरे शरीयत के उल्टे होते हैं, कुफ्र वाले निकल आते हैं। अफसोस, और अफसोस लफ्ज ही बहुत गलत है, ये यहाँ अफसोस नहीं होता है, यहाँ रजामंदी होनी चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। हाँ, हम उनको जाहिर कर सकते हैं कि भाई हाँ, बहुत अच्छे थे, बहुत, अगर औलाद हो तो औलाद के मामले से, बड़े हो तो बड़ों के मामले से बहुत अच्छे थे, नेक थे, आपके गम में हम भी शरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी सब्र अता करे, उनको भी जो है जन्नत अता करे, उनकी मगफिरत करे, ये अच्छी बातें कहे, है ना। जो उल्टे अल्फाज, उससे बचे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, है ना। जो अभी इसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह
کہ جو شخص کسی مصیبت میں ہے نا کیا کرتا ہے اظہار ہمدردی، کیا کرتا ہے کوئی شخص ہم مومنوں میں جو کوئی بھی کسی کی مصیبت میں اظہار ہمدردی کرے اپنے مسلم بھائی یا بہن کی، اللہ رب العزت روز قیامت کے دن اسے خاص قسم کا کپڑا پہنائیں گے۔ اگر ہم کسی کی تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں اگر ہم ان کو جا کے سمجھاتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں اس پریشانی سے نکال کر نارمل زندگی کی طرف، اس تکلیف سے نکال کر سکون کی طرف لانے کی کوشش کرتے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دن اللہ رب العزت الحمدللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو کیا کرے گا، اللہ اسے خاص لباس پہنائیں گے۔ سوچیے اللہ کی طرف سے کوئی لباس ہو تو وہ تو بہترین ہوگا، ہے نا، بہترین لباس ہوگا الحمدللہ۔ یہ بہت ساری دعائیں ہیں الحمدللہ جو میں اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں، ہر دعا تو میں پڑھ کر اب وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتا سکتی ہوں انشاءاللہ، لیکن الحمدللہ یہ میں کوشش کروں گی شیئر کرنے کی اگر کوئی بہنوں کو چاہیے ہو تو۔ لیکن یاد رکھے جیسے میں نے کہا نا ہمیں راضی رہنا ہے نا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ ہمارے یہاں تو الٹا قسم ہو جاتا ہے، سوچیے اگر آج کسی کے گھر میں میت ہو گئی، اب 1 مہینے تک کوئی نہیں جا پایا، ہوتا ہے دور ہوتے ہیں رشتہ دار، گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کو آتے ہوئے وقت لگتا ہے، کوئی 15 دن بعد آئے گا، کوئی 1 ہفتے بعد آئے گا، کوئی 1 مہینے بعد، اچھا کوئی فلاں گلف وغیرہ میں ہے تو اس کو تو سال بھر لگ جائے گا، ابھی تو گئے ہیں نوکری کے لیے، اب وہ سال بھر کے بعد آ رہے ہیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے۔ اب جب وہ آتے ہیں تو آپ تعزیت کیجیے، آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کے ساتھ خوشی مطلب ان کو نا دلاسا دیجیے، کیسے الحمدللہ چلے گئے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اللہ کے حکم سے چلے گئے، ہے نا، اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کو آسانی کرے الحمدللہ۔ اب سوال جواب کا وقت تو نکل گیا، وہ تو فوراً دفنانے کے بعد ہوتا ہے، اب ان کو قبر میں آسانی عطا کرے، ہے نا، وہ تمام چیزیں دعائیں کرے۔ ہم تو سوال لے کر بیٹھ جاتے، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اب وہ جس کے ساتھ ہوا ہے نا، اب آپ سوچ کر دیکھیے وہ پورا ہے نا، وہ پورا وہ ماحول وہ ریوائنڈ پہ جاتے ہیں، کیا ہوا تھا بھئی، ایسے حال میں تھے، یہ الفاظ کہے تھے، ایسی اچھا اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنے پریشان تھے، اللہ آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، زبان ویسی ہو گئی تھی، اچھا تو ہم کیا کریں پتہ ہے، ہم جو ہے نا ان کو تکلیف دے رہے۔ دیکھیں کسی کو جب تکلیف آلریڈی ایک بار گزر جاتی ہے نا، دوبارہ اس کو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا، وہ دوبارہ اس تکلیف کو جیتا ہے، ہم اس سے بچے، یہ ہمارے اندر بہت خراب بات آتی ہے، ہمیں نا پورے بیٹھ کر ڈیٹیلز لینے کے لیے بیٹھتے، ٹھیک ہے دیکھیے کیا کر لیں گے ہم جان کر، آپ مجھے بتائیے، ہے نا، بس ہمارے لیے کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے تھے، آئے تھے، چلے گئے، کہاں کتنی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمہ، ابھی کتنی بار ہوتا ہے نا کہ اگر کلمہ، دیکھیے کلمہ ہم بولتے ہیں نا کلمہ نصیب ہو، کتنی بار ہوتا ہے زبانی طور پر کلمہ ہوتا ہے، کتنی بار سنا ہی نہیں دیتا، اللہ رب العزت اس کی زبان پر کلمہ رکھتے، ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ کلمہ پڑھ کر ہی گئے تھے، یہ نہیں کلمہ پڑھ کر گئے تھے، نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے نا، لیکن ہم کسی کو جا کر کے نا ان کی وہ تمام تکلیفوں والی باتیں پوچھ کر ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب کیا ہوتا ہے نا جو غم ان کا چھپ گیا تھا، دب گیا تھا، بند ہو گیا تھا، وہ اللہ نے آسانی دے دی تھی ان کو، اب ہم نے پھر اس کو کریٹ کے نکالا ہے، تو ہم اس سے بچے، جو تعزیت کرنا کہتے ہیں نا، جب جا کے دلاسا دینا، ہم دلاسا نہیں دے رہے، ان کے زخم کو جو اللہ رب العزت نے الحمدللہ آسانی دی ہے اس کو کریٹتے ہیں، ہے نا، تو اس سے ہم انشاءاللہ بچیں گے۔ اور یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی ایسا کوئی عمل کرے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے نا، ان کو کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں اچھی باتیں، ہے نا، ہم نے کہا نا میت کے بارے میں، میت کے ٹائم پہ بھی اچھی باتیں کرنا ہے، جب ملنے جاتے تبھی بھی اچھی باتیں ہی کریے، ہے نا الحمدللہ، اور ان کو کیا کرے، یقین دلائے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے، میت جو چلے گئے ان کے ساتھ بھی، اور اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا انشاءاللہ، وہ بیسٹ پلانر ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے ہمارے لیے کیا بہترائی چھپا کر رکھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ان کو قرآن سے، دین سے جوڑیے، کتنی بار یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں ایسا حال ہوتا ہے نا، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، غم میں اتنے چلے جاتے ہیں نا کہ نفس ان پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ دین سے، قرآن سے دور ہو جاتے، ان کو قرآن کی طرف لائیے، بتائیے بھائی قرآن سے جڑیے، اس میں شفا ہے، اس میں سکون ہے، آپ کے تمام سوال کا، تمام غموں کا جواب قرآن میں ہے، ان کو قرآن سے جوڑیے انشاءاللہ۔ جب وہ قرآن سے جڑے، دیکھیے میری بہنوں، کوئی بھی ایک شخص بھی
आपके कहने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो तासीर दी है ना, हम कोशिश करेंगे, एक बहन भी अगर एक आयत भी, एक अमल भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको तो इंशाल्लाह आपको और मुझे क्या होगा, इसका अज्र और सवाब आखिरत के दिन तक मिलेगा। इंशाल्लाह मरने के बाद भी मिलता है ना, कोई इल्म की बातें जब बताते हैं इंशाल्लाह वो एंड में करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो उनको यकीन दिलाए अल्हम्दुलिल्लाह कि सब्र करना है और अज्र तलाश करनी है, तलब करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी उनके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा या बेटी, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, उनकी क्या हो रही है, वो मरने के करीब, मतलब वो मरने वाला है, ऐसे हालात में है, मतलब वो मर रही है। तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जल्दी आइए, मेरी औलाद जो है उसका इंतकाल हो रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता अपनी बेटी से क्या कहा कि अल्लाह ताला जो भी देता है, लेता है वो उसी को, है ना। देने वाला भी कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेने वाला भी कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा सब्र करो और अज्र तलब करो, जब सब्र करेंगे तो ही अज्र मिलेगा। हम भी लोगों को ये दिलासा दे सकते हैं, है ना। बेहतरीन बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाकर चले गए, अभी हमें और किसी से पूछने की, सीखने की, समझने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। हम कितनी बार, भाई मैं अपने बारे में कहती हूँ, मेरा खास करके होता है, नॉर्मल खुशी का माहौल होगा ना तो इंसान मैं बोल भी दूं, लेकिन जब भी मैं से कोई गमगीन बात सुनती हूँ, ऐसी कोई बात सुनती हूँ ना, मैं चुप हो जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। खुशी के मामले में तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन जब भी ऐसी कोई गम की बात होती है ना, मैं खामोश हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बातें मुझे सिखाई, तो अब सीख कर इंशाल्लाह बोलूंगी, है ना, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना, क्या चाहिए, आखिरत के दिन वो खास लिबास चाहिए, तो उसकी तैयारी तो मुझे करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कर सकते हैं हम मैयत के लिए। अब हम बोलते हैं भाई कैसे करे, क्या करे, हमने तो पता है दिनों को मुकर्रर किया है, पहले दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 40वें दिन, सबरसी पर नहीं, ये कहीं पर भी शरीयत से साबित नहीं है। अगर होता तो कितने हमने हदीसें पढ़ी है, सुनी है, कहीं पर कितने सहाबाओं का इंतकाल हुआ, कितने शहीद हुए जंगों में, कहीं पर भी आपने या हमने कहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक करके भाई इसका 10 दिन हुआ तब कुछ किया हो, 40 दिन हुआ तो कुछ, अरे साल गुजर गया अब कुछ कर रहे हो, नहीं। सोचिए सहाबाओं का इंतकाल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, जब वो रुखसत हुए इस दुनिया से, उसके बाद आपने कभी सुना, कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीरुल मोमिनीन गुजरे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली, तमाम के बारे में हमने पढ़ा, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि उन्होंने कुछ किया हो, नहीं। तो हम क्यों करते हैं जो अमल उन्होंने नहीं किया, हम क्या ज्यादा जानते हैं, हमारे पास क्या एक्स्ट्रा इल्म आ गया है, नहीं ना। हम क्यों अपनी जो हमारे लिए जो एक लकीर खींची गई है ना, उस लकीर के बाहर क्यों निकलना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए हैं कि ये एक ही सीधा रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाएगा, इसके अलावा तमाम रास्ते क्या है, गुमराही है जो जहन्नम लेके जाएगी। तो भाई जब जहन्नम जाना नहीं है तो उस रास्ते पर चलना क्यों है ना। तो ये फिक्र इंशाल्लाह करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 ऐसे वक्त है जब हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाना, जब भी वो खबर मिले या उनके पास हो तो उनके लिए दुआ कर ले। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि जो जनाजे की नमाज होती है, अब हम कहेंगे भाई औरतों को तो नहीं होती है, अब इस टॉपिक पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हमने हदीसों में अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबने सबने, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, सबने अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ी। अब इसके डिटेल्स, क्योंकि मैंने कहा ना हम भी तालिबे इल्म है, सीख ही रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश जरूर करेंगे कि इसके बारे में भी इत्मीनान से सीखें, और जब भी सीखेंगे इंशाल्लाह समझेंगे, आपको भी बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो क्या है, जनाजे की नमाज भी जो है वो अफजल बेहतरीन दुआ है मैयत के लिए, बेहतरीन दुआ है। तो हम क्या करें, हम अपने घर वालों को, जो मर्द हजरात है, बच्चे हैं, उनको बोले कि आप उनके जनाजों की नमाज में शिरकत करिए, उनके लिए दुआ करिए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा वक्त कब होता है, जब हम उनको दफना के, जब मर्द हजरात निकलते हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है ना, हम अगर घर में ही क्यों ना बैठे हो, हम क्या करें, उन पर आसानी से सवाल जवाब की दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बहन या भाई अब वहां पर दफन किए गए हैं, जो अल्लाह तेरे हिफ्ज़ अमान में है, अल्लाह उन पर सवाल जवाब क्या करे, आसान कर दे। और जब भी याद आएगी, जब भी उनकी याद आएगी, जिक्र होगा, उनके घर वालों से मुलाकात होगी, हम दुआ कर सकते हैं। कोई खास वक्त
खास दिन खास रात मुकर्रर नहीं है दुआ के लिए। हर वक्त हर हाल में अचानक अब मैं बैठी हूँ, अभी मुझे मेरी नानी की याद आई, मुझे मेरी दादी है, जो भी मेरे घर के मरहूम है, वालिदा, जो कोई भी वालिद है, जो भी याद आते हैं, फौरन दुआ कर ले, है ना, फौरन दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कितनी आसानी दी है ना दुआ के लिए, हमें कहीं पर शर्त नहीं रखी कि ऐसे करोगे, उस दिन करोगे तो मैं दुआ कबूल करने वाला नहीं। तो हम हर हाल में उनके लिए दुआ कर सकते हैं, है ना। कोई शिकवे शिकायत नहीं, कोई गलत काम नहीं, हर वो चीज करना है। देखिए याद रखिए, मैयत पर है ना, लोग कहते हैं कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, ये शरीयत से साबित नहीं है। हाँ, वो क्योंकि घर वाले गमगीन होते हैं, है ना, परेशान हाल होते हैं, कहीं ना कहीं एक सदमा लगता है, तो वो कैसे उस काम कर सकते हैं ना, चूल्हा जलाने का, खाना बनाने का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिश्तेदार है या आस पड़ोस वाले हैं, क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या करें, थोड़ा खाना बना करके भेज दे। हमने ये ना तमाम ये बातें जो हदीसों से आती है ना, इसको ओवर एक्स्ट्रा कर दिया है, हद से ज्यादा। यहाँ पर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब जाफर तला अन्हु, ये हजरत अली के सबसे बड़े भाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, उनका जब इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अहले मैयत के घर को खाना भेजने की हुक्म, यानी क्या कहा, खानदाने जाफर के लिए खाना तैयार करो, उनके पास ऐसी खबर आई है जिसने उनको मजबूर कर दिया है। अब याद रखें, ये फराइज में नहीं आता है, आप कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हमारे हाल पूरा उल्टा है। कितनी बार पहले तो होता था कि हमने सुना है, देखा है कि मैयत के घर में क्या होता है ना, रिश्तेदार आपस में डिस्कस करते, भाई आज का खाना मेरी तरफ से, कल का खाना आप भेज देना, परसों का खाना आप भेज देना। तो पहले क्या था ना, घर वालों के हिसाब से, उनके घर में जो लोग आए, चलो उनके लिए भी आप कर सकते हो। लेकिन अब तो हमारे यहाँ मैयतों के, हमने देखा लिटरली दावतें होती है। कितनी बार तो सुना भी है कि भाई जिनके घर में मैयत हुई ना, तो जा रहे हैं ना उनके घर पे ताजियत के लिए या शिरकत करने के लिए वहां पर, वो लोग घर पे कितनी बार जिक्र होता है, भाई खाना नहीं बनाना, हम मैयत में जा रहे हैं ना, खाना वही होगा। हम दावत में नहीं जा रहे, वो घर में गम है। हाँ, अब कोई लोग चलिए बाहर से कहीं आ रहे, है ना, कोई गांव से आया है, कोई फला मुल्क से आया है, कोई फला दूसरे शहर से आया है, अब वो क्या करेगा, तो वो भी घर वालों के साथ जो है खाना जो इंतजाम किया गया वो खा सकता है, उसमें मनाही नहीं है। और घर वालों पर फर्ज नहीं है कि चूल्हा जलेगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गौर फिक्र किया गया है कि ये तमाम चीजें अब सामने आ रही है, तो लोग उस पर अमल कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कुछ वक्त पहले तक भी था कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलना है तो नहीं जलना है। और अगर कोई जला दे, देखो इनके घर में मैयत हुई और ये चूल्हा जला रहे, और कोई खाना पकवान फिक्स नहीं है कि मैयत के घर में ये फलानी चीज ही जाएगी। लोगों के घर में, लोगों का दिमाग होता है कि शादी होगी तो ये खाना होता है, मैयत होगी तो ये खाना होगा। नहीं, आप वो स्पेसिफिक नहीं करते। मैंने कहा ना, हम किसी पर भी, खुद पर हो या किसी और पर, कोई हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते। फला रंग का खाना होगा, फला सिंपल सा वो दाल या चावल होगी, फला ये होगा। अगर आप कभी होता है ना, अगर समझो मैं किसी, अगर कभी ऐसा हो जाए कि पड़ोस के घर में हो गया है, अब मैं भी उनके साथ लगी हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास भी वक्त नहीं कि मैं खाना बनाऊं, मैं भी जो मेरे अल्लाह ना करे कभी, अभी तो बहुत है ये माहौल, कभी भी हो जाए तो मेंटली प्रिपेयर करना होता है अपने आप को, फिर कभी ऐसा हाल हो जाए, अब मैं खाना नहीं बना सकती, अब क्या करेंगे, तो मैं होटल से ऑर्डर करूंगी। अब मैं क्या करूंगी ना, कुछ तो करना है, इंतजाम तो करना है। तो मैं अब होटल वाले के पास तो मेन्यू नहीं होता ना कि भाई मैयत के घर का खाना देना, वो तो कहीं स्पेसिफिक शरीयत पे नहीं दिया हुआ है। तो वो मैं क्या करूंगी, जो उसके पास बनता है मैं वही मंगवा लूंगी। तो अब वहां पर लोगों के सवाल, भाई मैयत के घर में ये खाना कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तमाम चीजें क्या है, तमाम चीजें मना है, ये शरीयत में कहीं नहीं दिया हुआ है, ना कुरान में दिया है, ना हदीसों से सुन्नतों में साबित है। तो कहाँ से आ रही है रस्म रिवाज, कहाँ से आ रहे हैं। और गैर शरीयती अमल करने से हम उनके लिए बेहतराई नहीं, अपने लिए गुनाह का सबब बन रहे हैं, अपनी खुद की गुमराही का सबब बन रहे हैं, है ना। तो बहुत गौर व फिक्र करना है। याद रखिए, बहुत सारी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त की कमी है, बहुत वक्त मैंने ले लिया, माजरत चाहूंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब जानते हैं, इंडिया के हिसाब से, बेसिकली हमारे एशिया के हिसाब से आज जो है
21वीं रात है, 21 रमजान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताक रातों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए क्या है, तलाशना है शब कद्र को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आज शब कद्र की रात हो तो हमें नसीब कर। हम इबादतें करेंगे, हम जो है तलाश रहे हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं करेंगे। आज अब यहाँ जो बैठे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी हम क्या करें, इल्म सीख रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी का सबक सीख रहे हैं ना। तो हम जो है हर हाल में इन रातों को जागने की कोशिश जरूर करें। कल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्लास हुई थी लैलतुल कद्र के बारे में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उम्मीद करती हूँ सभी बहनों ने शिरकत की हो, सुना होगा। किसी का मिस हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे वो डाल दिया गया है ताकि आपको आसानी हो सुनने के लिए। अभी भी वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है, आज रात तो देखिए आज रात में अभी फौरन नहीं करना, लेकिन अगर सीखने की नियत से है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानी करे, लेकिन आप तिलावतें करें, आप जो है ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से बचते ही है रमजान में, लेकिन फिजूल कामों से बचे, फिजूल बातों से बचे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कुरान में इतनी तमाम चीजें मौजूद है, इतना मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, कुरान पहले से पढ़ते आए हैं। मैं अब सच बता रही हूँ, अपना खुद का मैं तर्जुमे के साथ भी पढ़ती थी, और कहीं ना अपने आप पर मुझे बहुत ये होता था भाई मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन आपको हक बताती हूँ, जब उसका मैंने तर्जुमा तफसीर सुनने लगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी अता की। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जब उससे अल्लाह ने मुझे वो हिदायत अता की, तो इतना कुछ सीखी हूँ जिंदगी, बोलते ना पूरा 360 नहीं बल्कि मैं समझा ही नहीं सकती कितना टर्न हुआ है, कितना टर्न हुआ है। अभी भी बहुत बाकी है सीखना, और मैं तो चाहती हूँ कि इसी हाल में सीखते ही मेरी मौत आए, ताकि मैं क्या हूँ, तालिब इल्म रहूं, है ना, तालिब इल्म रहूं, सीखती रहूं, अल्लाह को राजी करने के तरीके अमल करती रहूं, सीखती रहूं, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो हम कुरान से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं भाई हम हदीसें सुनते हैं, सीखते हैं, अमल करते हैं, लेकिन जब तक आप कुरान से नहीं जुड़ोगे, देखिए आप सब जानते हैं ना, हमारा भी सबके पास मोबाइल है, आप सब जानते हैं ना मोबाइल में क्या है, एक बेस प्लान होता है, बेसिक प्लान होता है। जब तक आपने वो नहीं लिया होगा ना, आप उसके साथ कुछ अलग अलग चीजें नहीं कर सकते हो। जैसे हम है ना चावल की बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बिरयानी है, पुलाव है ना, और सिंपल जीरा राइस, बहुत सारी चीजें। अगर आपने उसमें से सिर्फ चावल निकाल दिया तो कुछ नहीं बनेगा, है ना। नहीं मैं समझाने के लिए, क्योंकि हम औरतों को ये सब चीजें समझ में आती है, ये ऐसी एग्जाम्पल समझ में आते हैं। तो कुरान हमारी जिंदगी का बेस है। जब तक कुरान हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पहला सवाल का जवाब कुरान से मिलता है, जब वहां से हम नहीं समझ पाते हैं तो हम सुन्नत और हदीस की तरफ जाते हैं। पहली रोशनी नूर एक ही है, क्या है, कुरान। तो कुरान से जुड़िए, सिर्फ तिलावत नहीं करनी है, समझना है। खुद पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा मेरी बहनों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पर्सनली बहुत वक्त तक तर्जुमे के साथ पढ़ा, लेकिन मैं बोल रही ना समझ में आता था, लेकिन उसकी हकीकत नहीं समझ में आती थी। और अब तर्जुमा तफसीर से सुनती हूँ फिर भी लगता है भाई और सीखना है, क्योंकि वो इल्म का समंदर है कि जिसमें बोलते हैं ना हम सिर्फ अभी बोलते हैं छोटी उंगली डुबाने के बाद वो कतरा भी नहीं आया है, बल्कि उंगली गीली भी बहुत कम हुई है। अभी बोलते हैं ना बस शुरू किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और इल्म अता करे, तो लेकिन कुरान से जुड़ना जरूरी है। सभी बहनें इंशाल्लाह इंशाल्लाह नियतें करेंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रमजान की इन ताक रातों में जो लैलतुल कद्र की रात गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नसीब करे, उसका अजर सवाब, उसकी दुआएं, तमाम चीजें हम क्या करेंगे, सीखेंगे और गौर व फिक्र से करेंगे। हम सब लैलतुल कद्र तलाश करने के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं ना, लेकिन एक बात हम सब याद रखें कि लैलतुल कद्र की इतनी अहमियत क्यों है, रमजान की अहमियत इतनी क्यों आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कितना कर रहे हैं ना, क्यों है, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल किया गया, लैलतुल कद्र की रात में कुरान नाजिल किया गया। तो जो कुछ भी कुरान से जुड़ा है उसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया है। जब जिस शहर पर नाजिल हुआ, मक्का मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर तमाम जहां के शहरों में अफजल, उसका मकाम मर्तबा बढ़ गया। जिस नबी पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलामों पर उनका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। जो फरिश्ते उसका नुज़ूल अल्लाह के हुक्म से लाए थे, कौन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो तमाम फरिश्तों के सरदार है। जिस महीने में रमजान, जिस रात में लैलतुल कद्र, जिस उम्मत पर, हम जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया, वो तमाम उम्मतों पर अफजल कर दी गई है। तो सोचिए कब हुआ ये,
जब कुरान से जुड़े। तो सोचिए अगर हम कुरान से जुड़ते हैं तो हमारा मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे हमें जुड़ने वाला बनाए, उससे दोस्ती करने वाला बनाए, उससे सीखने वाला बनाए, अमल करने वाला, दूसरों तक पहुंचाने वाला, क्योंकि उसमें हर वो काम है, हर वो अमल है जो हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर करेगा। हर वो काम से बचाने की बातें हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत को बिगाड़ता है। दुश्मन से लड़ने की ताकत कुरान सिखाता है, तकलीफों से बचने को तरीका कुरान सिखाता है, बीमारियों में, तकलीफ में, परेशानी में सब्र करना कुरान सिखाता है। अल्लाह ने इतना बड़ा हथियार मुझे दिया है और मैं बेवकूफ हूँ कि मैं ट्रेनिंग ही नहीं करती, मैं सीखती ही नहीं हूँ, बस हाथ में पकड़ कर उसको रखा है, खोलती हूँ पढ़ती हूँ बंद करती हूँ, खोलती हूँ पढ़ती हूँ बंद करती हूँ। नहीं, उसको प्रैक्टिस करना है, अमल में लाना है, जुड़ना है। जब भी वक्त मिला खोल लो, जब भी वक्त मिला समझो, जब भी वक्त मिला तमाम अमल करना है कुरान से रिलेटेड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान की जिंदगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोबाइल कुरान, चलता फिरता कुरान कहते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। उनकी सुन्नतों पर, सुन्नतें क्या है, कुरान के मुताबिक उनकी जिंदगी थी। तो मैंने कहा ना, कुरान होगा तो ही ये चीजें हमारे अंदर इंशाल्लाह आएगी। ये तमाम चीजें एड ऑन है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुरान से अपने आप को जोड़ेंगे, तमाम उसके जो हक है मैं दोहरा देती हूँ। आप सब बहनों को मैं जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म अता किया है, हम बार बार कहते हैं, लेकिन खुद की याद दिलाने के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, कुरान के हम पर 5 हक है। पहला ईमान लाना कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, हक है और ये फुरकान है, हम ले आए। दूसरा उसको पढ़ना, तिलावत करना, माशाल्लाह माशाल्लाह हम बहनें तो बोलते ना बे इंतहा पढ़ते हैं। तीसरा है उसे समझना। अब हमने एक छोटी मोटी टूटी फूटी कोशिश शुरू की है उसे समझने की। चौथा हक है उस पर अमल करना। उसमें तो हम और पीछे हैं लेकिन कोशिश शुरू कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी अता करे। और पांचवा है, कहीं ना कहीं इसमें हम बहुत कमजोर हो गए मेरी बहन, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो गए। हम दूसरों तक उसको पहुंचा ही नहीं रहे हैं। हम तक कुरान और कुरान की बातें कहाँ से आई, जब लोगों ने दूसरों को बताए, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने किसी और को बताया तो हम तक आया ना। अगर वो लोग 5वां हक अदा नहीं करते तो हमें कहाँ से मिलता, हम तो महरूम रह जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लों दर नस्लें, नस्लें दर नस्लें चलता रहे ये काम। ये नबियों वाला काम है जो सोचिए हमें अता किया गया है। अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ये हमारे कांधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है, हम पर ये जिम्मेदारी है कि उम्मत मोहम्मदिया इस काम को आगे बढ़ाए, कुरान के 5 हक को अदा करे। अगर नहीं किया, 5 में से एक भी हक रह गया, तो वकील हमारी तरफ से लड़ने वाला था वो हमारे खिलाफ हमारा केस लड़ेगा, अल्लाह से झगड़ा करेगा कि इसने मेरा हक अदा नहीं किया था, इसे जन्नत में कैसे दाखिला मिले। सोचिए, है ना। तो बहुत फिक्र करनी है, कुरान से जुड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रमजान का महीना है, हमारी 2 क्लासेस ही चल रही हैं। तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह ताक रातों में शुरू हुई है, फहमुल कुरान दोपहर में चलती है, रात में ये स्पेशल टॉपिक्स पर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ताक रातों में हमारी रात में 1 बजे जो है कुरान की तर्जुमा तफसीर की क्लास शुरू हो रही है, जहाँ पर अम्मा पारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ना। लेकिन इसके बाद, रमजान के बाद कुछ छुट्टियां दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए, ताकि सब बहनों को हम दावत दे सके, है ना। रमजान में अब हम बोलते हैं भाई कहाँ सबको फोन करें, कहाँ सबको मैसेज करेंगे, तो अल्लाह ने कितनी आसानी दे दी कि रमजान के बाद कुछ दिन हमें मिल रहे हैं। पूरी तैयारी कर लो मेरी बहनों, जैसे ही ईद हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कमर को कस लेंगे कि भाई मुझे सब बहनों को दावत देनी है। आना नहीं आना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी, मेरा काम है मैं सबको बुलाऊंगी, मेरा काम है मैं सबको बताऊंगी, सबको बुलाऊंगी। अल्लाह लाने वाला है, मैं नहीं ला सकती, मेरे जबान में, मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है। अल्लाह जिसे हिदायत अता करेगा वो आएंगे, नहीं भी आएंगे अल्लाह ने उनके लिए कोई और जरिया रखा होगा। लेकिन कुरान की दावत हम सबको देंगे। जितने दिन है ना, मार्क कर लो कैलेंडर में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने दिन में ना रोज 10 बहनें, रोज 2 बहनें, रोज 1 बहन कम से कम मैं दावत दूंगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब ये बहनों पे क्या करेंगे, कोशिशें मेहनतें करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ सभी बहनें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। और याद दिलाते चलूं, मैयत पर जो है मौता के लिए, मरहूमों के लिए दुआएं करना है। अब बहुत सी बहनें हमसे बार बार एक सवाल करती है कि मरहूमों के लिए क्या करें, ये अमल वो अमल वो अमल, ये अमल ये बख्शा है वो पढ़े ये लिखे वो करे। तो मैं बताते चलूं, कुरान जो है वो जिंदगी के लिए हिदायत है। कुरान जो है बेशक मरने के बाद भी हमारे काम आएगा, लेकिन कब, जब मैंने उस पर मेहनत करी होगी, है ना। और बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो खुद का एग्जाम दे सकता है। अगर उस बच्चे के लिए दूसरा बच्चा जाके एग्जाम पेपर नहीं दे सकता। आप बोलोगे भाई मैं कुरान पढ़ रही हूँ और मैं सामने वाले को उसका दे रही हूँ, कैसे दोगे, वो उसका एग्जाम है वो देने वाला है, आप कहाँ से दोगे, नहीं दे सकते हो। उसी तरीके से कुरान जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, जिंदगी कैसे जियोगे ताकि आखिरत बेहतर कर सको, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो अमल है, 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 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 मिलते रहते हैं। आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला है सदकाए जारिया, है ना, वो अमल जो हमने अपनी जिंदगी में किया था, जो मरने के बाद भी हमें बेनिफिट देने वाला, यानी इन्वेस्टमेंट इस जिंदगी में, उसका अजर सवाब बेनिफिट मरने के बाद। सोचिए कितना बेहतरीन अल्लाह ने मेरे लिए इंतजाम किया है ना, कि इस जिंदगी में थोड़ा सा मैं कुछ कर लूं और मरने के बाद भी मुझे कब्र में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। वो क्या है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्तसर सा बताते चलती हूँ। पहले ऐसी कोई चीज है, जैसे इल्म की बात है, कुरान के देखिए जो पॉइंट्स हम सीख रहे हैं। अब देखिए अब मैं हूँ, ये पॉइंट्स मैं कहाँ से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लिख कर रखी है। अल्लाह के हुक्म से जब मैं मर जाऊंगी तो अब ये पॉइंट्स कौन करेगा, हो सकता है मेरी औलाद है, हो सकता है जिसके पास ये किताब पहुंचे वो, तो उस तक क्या पहुंचा, वो किताब पहुंच गई तो वो उस बातों को सीखेगा समझेगा सुनेगा दूसरों को बचाएगा। अब हम सब हदीसें इतनी पढ़ते हैं, इतने गौर फिक्र से समझते हैं ना। एक एग्जाम्पल देके चलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस हम कितनी पढ़ते हैं, तो सोचिए उनको कितना अजर सवाब मिल रहा है। उन्होंने क्या किए, उन्होंने जितनी हदीसें थी अल्हम्दुलिल्लाह सब जमा करके एक किताब बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो किताब सोचिए कितने मुसलमान पढ़ रहे हैं, कितने नॉन मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं, उनका सबका अजर सवाब उनको मिल रहा है ना। तो हम क्या करें, लिखने वाले हो, मैं जानती हूँ हम में से बहुत सी बहनें हैं जो हम कमजोर होती है लिखने की। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे लिखने वाला बना दे। आप है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस की जितनी बहन है ना, आप चाहो तो सबसे पूछ सकते हो, हम कहीं ना किसी फील्ड में कमजोर थे। ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं आती थी, ये तमाम चीजें लिखना बोलना पढ़ना करना हम ताज्जुब होते कैसे करेंगे, हमने कभी नहीं किया है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में नियत होती है, कोशिश, अल्लाह क्या कहते हैं, एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम चल कर आओ मैं दौड़ कर आऊंगा। मतलब क्या है, कोशिश करो नियतें करो कि अल्लाह मुझे करना है, तू मेरे लिए रास्ते आसान कर। हमारे ही बीच एक बहन है जिसको लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह से दुआएं की और उन्हें कोशिश की, ऐसा नहीं कि दुआ करके छोड़ दिया कि अल्लाह बस तू करने वाला है, नहीं, उन्होंने कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतनी बरकत इतनी ताकतें अता की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे। दूसरा, पेड़ को लगाना झाड़ को लगाना। हम सोचते भाई पेड़ लगाना कहाँ से, आता है हदीसों में कि अगर ये पता चल जाए कि कल कयामत है तो आज एक पौधा लगा दो। सोचिए कल कयामत है, कल तो दुनिया बर्बाद होने वाली, फिर आज एक पौधा लगाने का बेनिफिट। सोचिए ये हदीस में आता है ना। तो मतलब क्या है, हम जो है अच्छा काम करें, है ना। फिर आता है पानी का इंतजाम किसी ने कर दिया हो, अब कुआं खोदना तो भाई हमारे एक एक के लिए पॉसिबल नहीं है, कहीं पर पानी का मटका रख दे, परिंद चरिंद के लिए जानवर के लिए थोड़ा पानी का बर्तन रख दे, इंसानों के लिए मटका रखा जाता है ना, गर्मियां आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो कर दे, कहीं पर नल लगा दे जहाँ पानी की तकलीफ है, या थोड़ा मिल के करके थोड़ा इंतजाम कर दे, पंप का पानी का कुएं का, है ना। क्यों, आने वाली नस्लों को जब फायदा होगा तो उनकी दुआएं अल्लाह के हुक्म से हमें लगेंगी इंशाल्लाह। फिर मस्जिद की तामीर, हॉस्पिटलों का, आज मुसलमान तमाम चीजों में पैसे लगा रहे हैं। ये मैं ना बीच में बहुत इस बारे में जिक्र हुआ था, मैं फिर भी बताते चलूं। मुसलमानों के इलाकों में ये मैसेजेस में भी आया है, लोगों ने बताया भी और ये सर्वे किया गया, मुसलमान इलाकों में जितने शादी खाने मिले हैं उतनी स्कूलें नहीं मिली, उतने हॉस्पिटल्स नहीं मिले,
उतनी वो चीजें नहीं मिली जो आने वाली नस्लों को फायदा देगी। लेकिन हाँ, मैं शादी खानों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये तमाम चीजें, ये नहीं कि मैं इसके ऑपोजिट बोल रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमें करना किधर है ना? हम कहाँ जा रहे हैं, हमें जाना किधर? आज मुसलमानों की शादियों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, कर्जों में जा रहे हैं, गैर जरूरत रिवाजें कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमें जो सुन्नत तरीका सिखाया गया है, मुसाफिर खाने बनाए जाते थे, है ना, ताकि मुसाफिरों को आसान हो, इलाजों का इंतजाम किया जाता था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के लिए मदरसे खोले जाते थे। ये तमाम चीजें हम भूल गए हैं। बड़ी मुश्किल से हम फक्र करते कब हम, जब हम किसी की मदद कर दे। अब आया ना रमजान, ज़कात अदा की, अरे हमारे सीने चौड़े हो गए। किसी को सदका दे दिया, हमारे सीने और चौड़े हो गए। हम देने वाले कौन होते हैं? अल्लाह का शुक्र करना है कि लेने वाले थे बोल के हम दे पाए। नहीं तो भाई अपने ज़कात का अमाउंट लेके हम फिरते, कहाँ दे, कहाँ मेरा वो अदा होगा फर्ज? सोचिए, अल्लाह ने आसानी दी बोल के किसी को दे पाए ना? हम समझते हम देने वाले नहीं, लेने वाले अल्लाह ने अता किए बोल के देने वाले हुए हैं हम, है ना? हमेशा ऐसे सोचेंगे तो हमारे अंदर तकब्बुर, फ़क्र करना, ये तमाम चीज़ें नहीं आएँगी। ये नफ्स है ना, हमें बहुत शर्म में डालता है, बहुत ज़्यादा। अरे तूने उसकी मदद कर दी, तूने इतना ज़कात दे दी, तूने सदका खैरात कर दी। नहीं, मैंने नहीं की, अल्लाह ने मुझसे करवाया। जो टूटा-फूटा छोटा कर पा रही हूँ, ये तो कम है, मैं और ज़्यादा करना चाहती हूँ इंशाल्लाह, है ना? तो ये तमाम चीज़ें, मस्जिदों का बनाना, मदरसों का, हॉस्पिटलों का, इल्म की जगहों का, लाइब्रेरी का बनाना। आज मालूम मैं खुद तलाश करती हूँ कहीं पर कि भाई मुझे कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ इस्लामिक किताबें मिले ताकि हम पढ़ें, लिखें, समझें, लेकिन नहीं है मुआशरे में। बहुत कम है, कहाँ ढूँढेंगे? ऑनलाइन बहुत मिलता है लेकिन कहीं न कहीं फिर भी डर लगा रहता है, भाई सही है, नहीं है? उसको फिर तलाश करने में उतना वक़्त जाता है ना? तो आप कुछ नोट्स आपको मिल जाते हैं अच्छी जो सही हदीसों से है, लोगों तक पहुँचाइए, है ना? इल्म की दावत दीजिए, तमाम अमल कर सकते हैं, ये सदका जारिया होता है। दूसरा जब होता है, ये तो पहला तरीका हो गया, जो इंसान ज़िंदगी में करके गया हो। दूसरा, अगर वो किसी को इल्म सिखाकर या इल्म की बातें बताकर गया हो, है ना? इल्म कौन-सा, अगर आप में से या हम में से किसी ने एक अलीफ भी सिखाया होगा किसी को, वो अलीफ जब वो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में उसका अजर और सवाब मिलेगा। सोचिए एक अलीफ की बात कर दी। तो जितना इल्म हम बताएँगे, सिखाएँगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना? तो हम क्या करेंगे, जो भी सीखते हैं, हम में से बहुत बहनें क्या पता है हमारा होता है, पहले मैं तो सीख लूँ, मुझे तो पूरा मुकम्मल आ जाए, फिर मैं आगे बताऊँगी। अगर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन अगर ये सोचकर बैठ जाते कि पहले मैं 100% सीख लूँगा तो मैं आगे सिखाऊँगा, तो हम तक नहीं पहुँचता, है ना? क्या हुआ? जितना सीखते गए उतनी दावत देते गए। कुरान तो पूरा एक साथ नाज़िल हुआ था। नहीं, जितनी आयतें आई उतनी आयतें वो पहुँचाते गए, जितनी आयतें आई उतनी दावत देते गए। आज एक आयत सीखी है, एक अल्फ़ाज़ सीखा है, आज एक अल्फ़ाज़ हम सबको बताएँगे। एक आयत समझिए, एक आयत सबको बताएँगे। एक नेमत कैसी मिलती है वो सीखा, वो बताएँगे। जहन्नम से बचने का तरीका सीखा है, वो बताएँगे। जो भी सीख रहे हैं वो सब बताएँगे। वेट नहीं करना। किसी के पास गारंटी है कि वो पूरा इल्म सीख सकता है इस ज़िंदगी में? किसी के पास गारंटी है कि ज़िंदगी पूरी जब तक उसकी होगी वो पूरा सीख लेगा? बीच में मौत आ गई तो हम क्या करेंगे? अल्लाह सवाल करेंगे। इल्म दिया था, हिदायत दी थी, क्या किया उस इल्म का? नेमत दी थी ना, इल्म भी नेमत है हमारे लिए, क्या किया उस नेमत का? ज़ाया कर दिया, है ना? तो इंशाल्लाह जो इल्म सीखेंगे वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, शेयर व्हाट यू लर्न। जो भी सीखते हैं दूसरों के साथ बाँटेंगे। और तीसरा है नेक औलाद जो दुआएँ करती है। नेक औलाद, हम अपने औलाद को दुनिया के लिए रेडी कर रहे हैं। भई बेस्ट ग्रेड, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट जॉब, बेस्ट प्रेफ़रेंस, तमाम बेस्ट होना चाहिए, दुनिया के लिए सबसे बेस्ट है। दीन, अरे हाँ चलेगा, नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, कुरान ठीक है कभी-कभार पढ़ लो, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि हम यहीं पर कमज़ोर पड़ते हैं, है ना? जब हम अपने बच्चों को सब आम अच्छी बातें शरीयत के मुताबिक सिखाएँगे, तो ही वो भी हमारे लिए दुआएँ करेंगे, है ना? हमें ये तमाम चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है। तो हम बार-बार पूछते हैं ना मरहूमों के लिए क्या करना है, मरहूमों के लिए क्या करना है, तो ये अमल करना है। अब जो लोग अपने माँ-बाप की नियत से पूछते हैं भाई क्या करें? तो हम नेक बन जाएँ और उनके लिए दुआएँ करें। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
تو हम उम्मीद है सभी बहनों को सभी टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई हो। माजरत चाहूंगी कि बहुत वक्त ले लिया, लेकिन हमेशा मेरी बहनों याद रखिए कि मैयत में भी आता है, मैं एक बात भूल गई थी थोड़ा बताते चलूं, कि जो लोग नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, खास करके मर्द हजरात के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, जो नमाज जनाजा में शरीक होते हैं उनको एक कीरत सवाब मिलता है, और जो तदफीन तक यानी दफनाने तक शरीक होते हैं, साथ रहते हैं, उनको 2 कीरत सवाब मिलता है। जब पूछा गया भाई कीरत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ओहद पहाड़ के बराबर का क्या सवाब। सोचिए, है ना। तो अब हम औरतें तो नहीं जा सकती है कब्रिस्तान, हमारे यहाँ ये तमाम इंतजाम नहीं है, लेकिन हम अपने मर्द हजरात को बताएं ताकि वो भी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा इसमें शिरकत करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम 3 बातें हम याद रखेंगे। कोई भी पूछेगा, 3 चीजें हैं जिससे क्या होगा, अजर सवाब मरने के बाद भी मिलेगा, सदका जारिया, दूसरा है इल्म जो हमने सिखाया होगा, और तीसरा है नेक औलाद जो दुआ करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसने ये कह दिया इतना पढ़ लो वो कर मिल जाएगा, वो कर लो ये मिल जाएगा। सवाल, क्या ये कुरान और सही सुन्नत से साबित है, सही हदीस से साबित है तो मैं करूंगी, वरना या बेहतर है ना, गलत करने से तो बेहतर है ना करूं। इंशाल्लाह इसकी हम फिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अदा करे। आज जितनी भी खैर की बातें, अच्छी बातें, तमाम चीजें थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से थी। अगर कहीं पर कोई गलती, कमी, कोताही हो गई, वो मेरे ईमान की कमजोरी की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों के लिए मुझे माफ करे, और आप सभी बहनों से भी माजरत चाहूंगी अगर मेरे बताने में कुछ कमी कोताही रह गई हो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आज की रात अगर लैलतुल कद्र होती है, या आने वाली रातों में जब भी लैलतुल कद्र हो, अल्लाह हम सभी बहनों को इंशाल्लाह इसे नसीब अता करे। और जो भी कुरान से हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह कुरान से और ज्यादा जुड़ने वाले हो, और इंशाल्लाह हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है अमल करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को बताएंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करा लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह बहनें जो है अनम्यूट कर पाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व सय्यदिना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। आज जुम्मा का बहुत बड़ा फजीलत वाला दिन था, और आज की रात भी लैलतुल क़द्र की पहली रात है। इंशाल्लाह अशरे का दिन है, तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगेंगे। और आमिरा मैंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई थी, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करेंगे, और सुनने से ज़्यादा भी अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जो बच्चे इस दीनी काम में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह इन तमाम को ज़ौक़ शौक़ और भी बढ़ाए, और जो वक्त पर आके बैठ भी जाते हैं, अल्लाह इन तमाम को अच्छा रखे, इनके सरों पर इनके शौहरों के प्यार भरे शफ़क़त भरे साया कायम रखे, और इनके लिए जो भी मदद करते हैं अल्लाह इन तमाम को भी अच्छा रखे इंशाल्लाह। ये खूबसूरत दिन की इब्तिदा इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें, और रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम को खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक हमेशा आप तमाम का निगहबान और मददगार हो। आमीन। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है, और इस वक्त में किनारा करने वाला कोई अपना भी क्यों ना हो तो वो दिल से उतर जाता है। या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी ज़रूरतमंद को देखूं तो उसकी मदद कर सकूं। आमीन। सब्र बरसों का, महीनों का, दिनों का, और ज्यादातर एक लम्हे का भी होता है। एक लम्हे में फैसला हो जाता है, अल्लाह की माने या अपने नफ्स की। अल्लाह के लिए खुद को हराम व नाराजगी वाले कामों से रोकना भी सब्र है। किसी की तल्ख बात को अपने दीन की बदौलत सब्र से सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स तुम में से मौत की आरज़ू ना करे, अगर वो नेक है तो मुमकिन है कि नेकी में उसके और भी ज्यादा इजाफा हो, और अगर बुरा है तो मुमकिन है कि वो इससे तौबा कर ले। जो तूने दिया है तेरी नियामत, और जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत, और जो तूने देकर ले लिया वो तेरा इम्तिहान है। ऐ अल्लाह हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक दे। ऐ जुल जलाल इकराम हमारे खताओं को बख्श दे, तौबा कबूल फरमा, इल्म नाफिया, सेहत कामिला, औलाद सालेहा, रिज़्क़ हलाल, मुकाम अब्दियत, इश्क मुस्तफ़ा अता फरमा। हम पर रहम फरमा या रहीम, हमें कुफर, शिर्क, शैतान और
حاسدوں کے شر سے اپنے پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنا۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ وہ تیرے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کے گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جیسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ خیر فرما میرے گھر والوں کی تمام کو، اور میرے والدین، بہن بھائی، رشتے دار، دوست احباب اور تمام امت مسلمہ پر انشاءاللہ۔ یا اللہ سب کی خیر فرما، جن کو میں جانتا بھی ہوں یا جن کو میں نہیں بھی جانتا ہوں۔ اے میرے مالک مشکل کشا، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما۔ جو ہماری تقدیر میں مقدر میں نہیں ہے اس کی کوشش میں اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ آمین۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر کی تعریف سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روزے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے رمضان شریف کا اچھی طرح سے استقبال کرو، اور اس کی جو بھی اراکین اللہ نے ہم نے سر فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور پورے اراکین کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں صلاحیت دے، ہمت دے، طاقت دے اور استقامت دے، صبر اور تقوی دے، اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی اللہ ہدایت دے، اسلام کے دین اور دنیا کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی توفیق دے، اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب کر۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھو، اگر سب کو ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کیا کہنا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستوں کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ ہم میں جو تھی نہ کوئی بات اللہ کو یاد آ سکے، ہم اللہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے، اور اس کے احکامات پر چلنے سے انشاءاللہ اور زیادہ یاد کریں گے۔ یا اللہ بس میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں جو نوئی بھی آئی، اللہ ان تمام کو اللہ دین اور دنیا کی دولت دے، اور ان 10 راتوں میں جو آج پہلی رات شروع ہو گئی، اللہ دعا کرنے کی، ہمارے ہمارے گناہوں کی معافی ماننے کی، توبہ کرنے کی، اللہ ہم سب کو تمام کو توفیق دے۔ اور جو اس بیماری کو جو پچھلے سال ہم لوگ کتنے مجبور ہو گئے تھے، نمازیں بھی پڑھنے مسجد میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، نمازیں بھی جاری ہو گئی، مسجدیں بھی کھل گئی، اور سب کچھ پہلے کے جیسا ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اللہ ہم سے خوش ہو گیا ہے۔ تو اللہ کیا کریں گے ہم لوگ، اور بھی اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، تابع داری کریں گے، صبر اور تقوی کریں گے، اور ہم ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اور بچوں کو بھی گھر میں یہ سب کچھ سکھائیں گے۔ اگر بچے زبردستی چھوٹے ہیں پھر بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنا مت۔ آج اگر وہ روزہ رہ گئے تو انشاءاللہ ان کو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم بچوں کو بھی اپنے گھروں میں تمام کو بھی انشاءاللہ اللہ کے احکامات کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بتائیں گے۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہی ہمارا پرسان حال ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے ہم لوگ کیا کریں، گڑ گڑا کر، رو کر۔ تہجد کا ٹائم بہت اچھا ہے انشاءاللہ، اس ٹائم پہ اللہ سے بہت دعائیں کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، دوسروں کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ جو کچھ بھی اللہ سب نے مانگا ہے، اللہ سب کے حاجات کو پوری کر دے۔ جن کے شوہروں کے بارے میں دعا کے لیے کہا تھا، اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات دگنی ترقی دے، یا اللہ ان کو حلال روزی نصیب کر، اور جو بھی بچے بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو بھی حلال روزی نصیب کر۔
یا اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، اور ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں روز محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور نامہ اعمال ہمیں اللہ دائیں ہاتھ میں جانا نصیب کر، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور پوسیرات کو پلی کی طرح گزرنے والا بنا دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے ہمیں کوثر پینا نصیب کر۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اور یہاں آج کلاس میں جو بھی سنے ہیں، جو بھی سمجھیں گے، سنیں گے، جو بھی سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں آئے ہیں اللہ اپنے دوست احباب ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں ان کو بھی سب اچھی باتیں بتائیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ ان کو بھی دے گا اور تم کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہاں کی دولت نصیب کر، یا اللہ ہمیں دنیا میں کامیاب بنا دے، یا اللہ تو استقامت دے، صبر دے، ہمت دے۔ اور ان طاق راتوں میں کیا ہر ہی رات 10 راتیں بھی طاق ہے، کون سی ہے معلوم نہیں، انشاءاللہ ان 10 راتوں کو بھی محنت کر کے اللہ کے ساتھ کوشش کر کے اللہ کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل نماز ہے وہ بھی پڑھیں گے، قرآن شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور جو یہ کلاسز جو 2 بجے تک بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، جو قرآن جو ختم نہیں ہوا تو وہ جو ختم کر رہے ہیں اس کو بھی سنیں گے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم پر رحم کر، کرم کر، اور ہمیں ان تمام کلاسوں میں بیٹھنے کی اور یہاں سے کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام کو استقامت دے، صبر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں حسد، جلن اور بخت سے بچا لے، اور قرض کے بوجھ سے بھی ہلکا کر دے۔ آج رات کو بچوں جو بھی دعائیں ہیں، اپنی دعائیں ہیں، اپنے دعائیں، تمام دعائیں اللہ کے لیے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارے دعاؤں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، رحم کر، کرم کر، اور ہمارے دعاؤں کو قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے توبہ کو قبول کر انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔